Namaste Saraswate Paramani Pracharine Krishna Chaitanya Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jai Nitai Gauranga Jaya Hara Hare, Jai Satchidananda Gaura Hare, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjan Salakaya Chakshurunmilitam Yeno Tasmai Shri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। सभी लोगों का आज 9वें दिन में स्वागत है। हम लोग मिडिल में पहुंच गए, आधा रास्ता तय किया, लादा तो आधा, आधा तो साधा। तो
9 दिन बीत गए, अब कल से काउंट डाउन चालू हो जाएगा और हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आज 9वां अध्याय की हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर रिकैप करेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन युद्ध करने से मना करता है। दूसरा में भगवान कृष्ण उसको जो है उसके तर्कों का खंडन करते हैं और उसको युद्ध करने के लिए बोलते हैं। तीसरा योग जो कर्मयोग, चौथा ज्ञान योग, 5वां अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, 6ठा अध्याय अष्टांग योग, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, और कल 8वां हम लोगों ने किया था अक्षर ब्रह्म भगवत प्राप्ति। और आज जो अध्याय है उसका नाम दिया गया है राज गुह्य योग। राजयोग भी है और ये गुह्य योग भी है। तो हम लोग थोड़ा सा कल का जो किया उसका 2-3 पोलिंग कर लेते हैं क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है गौरव प्रभु? हाँ प्रभु। तो क्वेश्चन है, जो मृत्यु को समय जो भगवान कृष्ण को याद करता है उसकी गति क्या होती है? वो स्वर्ग जाता है, कृष्ण लोक को जाता है, पृथ्वी लोक को जाता है, नरक को जाता है? प्रश्न सभी लोगों को समझ में आया? जो मृत्यु के समय कृष्ण को याद करता है वो मृत्यु के पश्चात किस लोक में वो पुनर्जन्म होता है? स्वर्ग लोक में, कृष्ण लोक में, पृथ्वी लोक में, नरक लोक में? ठीक है, अब हम लोग खत्म करते हैं पोल। तो 27% लोगों ने बोला स्वर्ग लोक, 73% लोगों ने बोला कृष्ण लोक और 0% पृथ्वी लोक और नरक लोक। सही आंसर है कृष्ण लोक, क्योंकि स्वर्ग लोक भी टेम्पोररी लोक ही है जहां देवता रहते हैं जो पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग जाते हैं, लेकिन उनको फिर पुण्य कर्म छीन होने के बाद उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो कृष्ण लोक जो है शाश्वत लोक है, और जो मरते के समय जो भगवान को याद करता है वो कृष्ण लोक में जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जो 8वें अध्याय के 7वां श्लोक में था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु से प्रारंभ होता था। तो उसमें कृष्ण क्या करने बोलते हैं? जो हमेशा उनके बारे में सोचो और युद्ध करो। अर्जुन को अंत में बोलते हैं ना, मध्य में ही फिर बोलते हैं जो युद्ध करो और उसके बाद मेरा ध्यान करो, या बोलते हैं सिर्फ युद्ध करो, या बोलते हैं जो हमको सिर्फ याद करो, युद्ध मत करो। समझ में आया? जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला जो हमेशा मेरा स्मरण करो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, या पहले युद्ध कर लो उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद हमारा स्मरण करना, या बोले जो युद्ध करो, या बोले जो हमको मेरा ही स्मरण करो, युद्ध मत करो।
है, समाप्त करते हैं। एट्टी 86% लोगों ने बोला जो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। 3% लोगों ने बोला पहले युद्ध कर लो उसके बाद हमको स्मरण करना। 3% लोगों ने बोला सिर्फ युद्ध करो। और 8% लोगों ने बोला जो भगवान को याद करो, हमको याद करो, युद्ध मत करो। ठीक है, तो जो ज्यादा लोगों ने सही किया है 86% लोगों ने, वही सही आंसर है। भगवान ने बोला हमेशा हमको याद करते रहो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध किसी दुश्मनी के लिए या क्रोध के बस में या पृथ्वी जीतने के लिए या साम्राज्य जीतने के लिए नहीं करो। मैंने तुमको आज्ञा दिया है युद्ध करने का, तुम हमको स्मरण करो और हर स्थिति में और युद्ध करते रहो। ठीक है, एक प्रश्न और है। वन हु रीचेज कृष्णा जब, जो कृष्ण के लोक में चला जाता है, नेवर रिटर्न्स द टेम्पोररी वर्ल्ड, वो फिर ये अशाश्वत जगत में, अस्थाई जगत में लौट के नहीं आता है। ये स्वर्ग हो या पृथ्वी लोक हो या ब्रह्म लोक हो, कभी कभी स्वर्ग जाता है या फिर पृथ्वी पर लौट के आ जाता है, या ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, जो जीवों का लक्ष्य कौन डिसाइड करता है? जब शरीर छोड़ते समय जो है जीव का अगला पुनर्जन्म कहाँ होगा, उसका निश्चय कैसे होता है? जो आदमी उस समय सोचता है और जो याद आता है उसका, या जो उसने कर्म किए हैं उस कर्म के फल के हिसाब से, या दान कर्म के हिसाब से, और चौथा आई एम नॉट श्योर, हमको पता नहीं। प्रश्न समझ में आया? जो जीव मृत्यु के समय अपना जब शरीर छोड़ता है तो उसका अगला जन्म का निर्धारण किस आधार पर होता है? उसके विचार, उस समय जो वो सोचता है और जो उसको याद आता है, उसने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फल के हिसाब पर, या उसने जो दान दिए हैं दान के आधार पर, और इन तीनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है। तो पहले में जो कृष्ण के धाम में एक बार जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है, या स्वर्ग को कभी कभी आता है, या पृथ्वी पर आ जाता है, या कहीं नहीं, तो उसमें 86% लोगों ने बताया जो भगवान के धाम कृष्ण के लोक में जाता है वो लौट के नहीं आता है। 3% लोगों ने बोला कभी कभी स्वर्ग जाता है। 5% लोगों ने बोला पृथ्वी पर लौट के आ जाता है। 6% लोगों ने बोला ऊपर में से कोई सही नहीं। तो जो ज्यादा लोगों ने किया है वही सही जवाब है। जो कृष्ण के लोक में जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जो हमारे परम धाम को जाता है उसका फिर लौट के आना नहीं होता है। क्योंकि एक बार जो इस अशाश्वत जगत का सुख दुख को अनुभव कर लेता है, वो फिर जब भगवान के लोक में जाता है तो उसके लौट के आने की कोई संभावना ही नहीं, वो नहीं आ सकता है। दूसरा, जो हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण कैसे होता है, तो उसमें 65% लोगों ने बोला है मृत्यु के समय हमारे
जो है जो सोचते हैं और जो याद आता है उसके आधार पर 30% लोगों ने बोला है सकाम कर्म के फल के आधार पर, 3% लोगों ने बोला है दान और 2% लोगों ने आई एम नॉट श्योर, पता नहीं। तो इसमें भी जो ज्यादा लोगों ने 65% लोगों ने जो किया है वो सही है। जो मृत्यु के समय जो चीज याद आएगा उसी के हिसाब से हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको प्रारंभ करते हैं राजयोग को। आज लगता है सूर्य ग्रहण है, इंडिया में तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, तो कुछ लोग लगता है सूर्य ग्रहण भी देखने के लिए गए होंगे। तो हम लोग प्रारंभ किया जाए, वक्त तो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर। राजगुह्य योग का मतलब होता है सिंपल और रहस्यमय। ये राजयोग, राजपथ होता है ना, जो राजपथ पर कोई व्यवधान नहीं होता है, उस पर बहुत तेजी से गाड़ी चला सकते हैं। और गुह्य का मतलब हुआ रहस्य। ये राजमार्ग भी है और गुह्य मार्ग भी है, बहुत ही रहस्यमय मार्ग की आज बात करेंगे। नेक्स्ट प्रो। पीछे एक और स्लाइड होगा, नहीं है? हाँ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं परिवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोच्यसे अशुभात्। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसको जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तभी भगवान बोलते हैं ऐसा ज्ञान हम तुमको दूंगा जिसको जानने से तुम निश्चित रूप से इस अशुभ लोक से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जो टेम्पोररी लोक हैं, इसको अशुभ बोला जाता है, ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। इस पर जो हम लोग सोचते हैं ये शुभ होगा, ये शुभ होगा, यहाँ कभी भी शुभ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब बोलते हैं जो हे अर्जुन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं जो ये ज्ञान अनुभव पर आधारित ज्ञान है और पवित्र है, सबसे उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, यह धर्म का सिद्धांत है और जिसको सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जैसे राजविद्या है, राजविद्या है मतलब वो बिना किसी अवरोध के इसका जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका प्रतिपादन कर सकते हैं, इसलिए इसको राजविद्या राजगुह्यम दो अभिधा से इसको विभूषित किया गया है। नेक्स्ट। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब बोलते हैं अश्रद्धाना पुरुषा, जो हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर आते जाते रहे। जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है वो हमको प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु संसार वर्तमनि, वो इस संसार में आते जाते रहेंगे। जन्म होगा, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट। 4
मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। अब इसमें बोलते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, जो ये सारा जगत जो है मुझ में ही है और मैं अव्यक्त रूप से, मेरा जो निराकार रूप है वो इसको धारण किए हुए है। और मतस्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में है, न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो इसमें जो है फिर प्रश्न उठता है, जो आप बोलते हैं साकार हैं, फिर यहाँ बोल रहे हैं निराकार हैं। तो हम लोगों ने बात किया भगवान साकार हैं, उनका शरीर है, उनकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, लेकिन उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है और पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में फैलता है, या उनके शरीर से जो चेतना है, जो कल हम लोगों ने बात की थी विष्णु के 3 रूप, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु। महाविष्णु सारी भौतिक सृष्टि के मालिक, नारायण चतुर्भुजी नारायण सारे वैकुंठ लोक के मालिक। उसके वैसे ही जो है भौतिक जगत के मालिक चतुर्भुजी महाविष्णु, और महाविष्णु का विस्तार होता है और उनके बाएं हाथ से गर्भोदक साई विष्णु का विस्तार होता है और एक एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं। और फिर गर्भोदक साई विष्णु अपना विस्तार करते हैं और एक एक जीवों के हृदय में अवस्थित होते हैं और एक एक अणुओं में प्रवेश करते हैं। तो उनको बोले क्षीरोदक साई विष्णु या परमात्मा। तो इसलिए भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है वो, और उनका जो ब्रह्म स्वरूप है, जो प्रकाश है, ये निराकार है। तो जो लोग इन दोनों को जानते हैं तो वो बोलते हैं भगवान निराकार है, लेकिन भगवान साकार हैं, ये उनका 2 निराकार स्वरूप है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलते हैं जो मैं अव्यक्त रूप से इस जगत को धारण किए हुए हूं और सारे जो जीव हैं वो मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो फिर यहाँ भी कंट्राडिक्शन होता है, जो आप बता रहे हैं जो परमात्मा के रूप में सब चीज अणु में भी हैं और जीवों में है, फिर बोलते हैं जो सारे जीव मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका मतलब इस तरह से समझें, जो ये संसार उन्हीं की इच्छा से बना है, 3 गुण उन्होंने पैदा किए और हम लोग 3 गुणों के बंधन में बंधे रहते हैं और जन्म मृत्यु होता है। लेकिन भगवान इस सब से अप्रभावित है, उनको ये गुण प्रभावित नहीं कर सकता है, उनको ये संसार प्रभावित नहीं कर सकता है, उनको ये जो ज्ञानेंद्रिय के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श है, उनको प्रभावित नहीं करता है। इसको इस तरह से समझें, भगवान बोलते हैं सब मेरे में है, ये पूरे जो सृष्टि है उसको अव्यक्त रूप से मैं ही धारण किए हुए हूँ, सभी जीवों में मैं हूँ और सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये कहने का मतलब है कि मैं उनसे इफेक्ट नहीं होता, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बोला ना, चातुर्वर्ण में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम माम माम अव्यक्त अनुत्तमम। तो बोलते हैं माम अव्ययम अनुत्तमम, जो 4 वर्ण की हमने सृष्टि की है गुण और कर्म के हिसाब से, लेकिन मैं उसका कर्ता नहीं माना। मैं जो है अपने को अकर्ता मानते हैं, बोलते हैं मैंने ही चारों बनाया, लेकिन वो अकर्ता है, मतलब वो इस किसी वर्णों में से नहीं है, वो न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है। तो इसको इस तरह से समझेंगे, नहीं तो फिर इसमें कंट्राडिक्शन होगा। एक बार बोलते हैं सब मैं ही हूँ, फिर बोलते हैं मैं उसमें नहीं हूँ। हाँ, मैंने ही जाति बनाया लेकिन मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, फिर आपने ही बनाया तो फिर कर्ता नहीं कैसे हुए। तो इसको इस हिसाब से समझना जो वो अनएफेक्टेड है, वो इन चीजों से, भौतिक चीजों से उन पर कोई न तो गुण का कोई असर है, न प्रकृति के विषयों का कोई असर है, न उन पर वर्ण का और आश्रम का, धर्म का नियम लागू होता है। ना 9.5 न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमेवैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना।
अब ये बोलते हैं जो मैं उन जीवों में या उन पदार्थों में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा ऐश्वर्य देखो, जो सभी जीवों का पालन करता, सबको मेंटेन करने वाला मैं ही हूं। ममात्मा भूत भावना बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। उन्हीं की इच्छा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसे हम लोगों ने कल देखा, कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक के अंदर 3 लोक हो गए, गोलोक, वृंदावन, मथुरा और द्वारका, फिर उसके नीचे अयोध्या, उसके नीचे वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में बहुत सारे चतुर्भुजी भगवान हैं, भगवान के विस्तार हैं, तो उसमें एक सदाशिव का लोक है। और फिर जो है उनसे महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु और शंभु। क्या बताया हम लोगों ने कल? हम लोगों ने देखा भगवान महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकशाही विष्णु, जो एक एक ब्रह्मांड के मालिक, दाहिने हाथ से प्रजापति ब्रह्मा और उनके ये से भौं से, भ्रिकुटी से, आज्ञा चक्र से जो शंभु। तो सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है, वो चतुर्भुजी है। तो हमने देखा जो वैकुंठ के नीचे जो है एक लोक है, जिसका एक तरफ जो वैकुंठ की तरफ है वो सदाशिव का लोक है, वो आधा वैकुंठ हुआ। नीचे जो महाविष्णु के भ्रिकुटी से जो पैदा हुए वो शंभु है। तो वही सदाशिव ही जब तमोगुण से मिश्रित हो जाते हैं तो फिर वो शंभु हो जाते हैं। तो इतना ही फर्क है। शंभु जो है वो विष्णु ही है, लेकिन विष्णु तमोगुण से मिश्रित होकर के इस सृष्टि को का संहार के लिए वो आते हैं। तो भगवान के हाथ से जो गर्भोदकशाही विष्णु निकले वो पालन करता है, क्योंकि वो विनाश का काम विष्णु नहीं कर सकते। विष्णु जो है शुद्ध सत्व में है, तो विष्णु से आप संहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए विष्णु ही तमोगुण से मिश्रित होकर के शंभु होते हैं। अब फिर गर्भोदकशाही विष्णु के देखे, जो उनके नाभि कमल से जो है एक कमल, नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और वो कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होते हैं और वो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। और फिर ब्रह्मा के भ्रिकुटी से रुद्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो शंभु एक, महाविष्णु एक, प्रजापति ब्रह्मा एक। अब जितने यूनिवर्स, जितने ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के एक विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मा, एक रुद्र। जितने हमारे जो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे एक अलग विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मा है और एक रुद्र है। लेकिन विष्णु तत्व के हिसाब से देखें तो सब एक ही है। कृष्ण भी विष्णु तत्व है, जो वैकुंठ में चतुर्भुजी विस्तार है उनके, जो भी संकर्षण है, अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न हैं, नरसिंह देव हैं, वामन हैं, अच्युत हैं, उपेंद्र हैं, अधोक्षज हैं, हरि हैं, जो भी हैं, तात्विक दृष्टि से देखें तो सब विष्णु तत्व हैं। लेकिन क्वालिटेटिव दृष्टि से थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे कृष्ण लोक वाले सब 2 भुजा वाले हैं, जैसे मनुष्य है वैसे ही 2 भुजा वाले हैं। वहां संबंध है, जीवात्माओं के बीच और भगवान के बीच संबंध है, या तो माता और बच्चे का संबंध है, या मित्र का संबंध है, या प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, या पति पत्नी का संबंध है। वैकुंठ लोक में वो संबंध नहीं है। वैकुंठ लोक में वो लॉर्ड हैं, हम उनके सेवक हैं, दास हैं, माय लॉर्ड। वहां जैसे हमने बताया, हाई कोर्ट का जज ऑफिस में सब उसको माय लॉर्ड बोलता है। घर में आया तो उसके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका उनसे संबंध, एक ही आदमी है। लेकिन जब कोर्ट में है तो उसका जो है बिहेवियर दूसरे तरह का है। जब घर में आया तो दूसरे तरह से उससे जो है व्यवहार होता है। वैसे ही जो भगवान का रूप वैकुंठ में है वो हाई कोर्ट के जज की तरह का है, और जो कृष्ण लोक में है वो जज जब घर में है। ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे जो कैसे ये सृष्टि में
भगवान ने ही, अब महाविष्णु की जो है उन्हीं से जो है चिद बीज निकलता है, उन्हीं से महतत्व निकलता है। महतत्व जो है बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, अहंकार मन में, मन आकाश में, आकाश वायु में, वायु अग्नि में, अग्नि जल में, और जल पृथ्वी में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से भौतिक जगत में 8 प्रकृति हो गई, 3 सूक्ष्म, 5 स्थूल। लेकिन ये सब क्रियाशील नहीं होती है। तो फिर जब महाविष्णु अपना आंख खोलते हैं और एक बार नजर डालते हैं माया देवी पर, तो माया देवी जो है में हलचल हो जाता है। क्योंकि जब भगवान महाविष्णु अपना दृष्टि डालते हैं माया पर, तो वो तीनों गुणों से जो है, तीनों गुणों, 3 शक्ति, तमोगुण, तमोबल, रजोबल और सतोबल का प्रवाह होता है, और तब जो है प्रकृति चलायमान हो जाती है। तो भगवान के महाविष्णु के रोमकूप से जो है चिद बीज निकला और महतत्व निकला, और फिर उनकी जो दृष्टि जब उन्होंने डाला प्रकृति पर, तो प्रकृति गर्भवती होती है, माया देवी गर्भवती होती है, उनमें हलन चलन होता है, उसमें फिर शक्ति का संचार होता है। और फिर जीवात्मा भी महाविष्णु के ही रोमकूप से निकलते हैं। जो कल हम लोगों ने बात किया, जो ब्रह्मा का 1 दिन और 1 रात के बारे में बात की। ब्रह्मा का 1 दिन कितने दिन का हम लोगों ने किया था? ब्रह्मा के 1 दिन को कल्प बोलते हैं, और हमारे सोलर ईयर्स के हिसाब से 311 ट्रिलियन। हम लोग ने चतुर्युग की बात की, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000, चारों मिला के 43,20,000। ये हुआ एक चतुर्युग। हाँ, और ऐसे 71 चतुर्युग का 1 मनवंतर, और ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु का शासन होता है। तो इस तरह से 14 मनु का शासन, 71 चतुर्युग, करीब करीब 1000 चतुर्युग होते हैं। ये ब्रह्मा का 1 दिन हुआ। वैसा ही 1000 चतुर्युग का रात्रि। ठीक है, तो दोनों मिलाक हो गया 86,40,40,000 का उनका 1 दिन रात। अब इसको 360 से गुना कर दीजिए तो 1 साल हो गया, 100 से गुना कर दीजिए तो ब्रह्मा की आयु हो गई, तो होता है 311 ट्रिलियन। 311 ट्रिलियन मतलब 311 पर 12 शून्य, मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन 100 खरब का हो जाएगा। तो ये हुआ ब्रह्मा का लाइफ। तो कहने का मतलब है, जो सारी चीज जो है भगवान से ही निश्रित है। आत्मा उन्हीं के रोमकूप से निकलता है, प्रकृति उन्हीं से निकलती है, उन्हीं के दृष्टि डालने से माया गर्भवती होती है, माया संचालित होती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भगवान जो है इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं, वो पूरे अलग हैं। एवं सर्वोदयम एवं सर्वमयम देवम सदानंद परात्परा आत्मा आरामस्य वियोगेन आत्मा आरामस्य वियोगेन तयासः। ऐसा उन्होंने ब्रह्म संहिता में बोला है, जो सारा सृष्टि मैं करता हूँ, माया देवी को मैं ही संचालित करता हूँ, मैं ही उनको गर्भाधान कराता हूँ, लेकिन मैं उनसे अटैच नहीं हूँ। मैं हमेशा रमा देवी के साथ रमन करता हूँ। आत्मा आराम से, भगवान जो है आत्मारामी है, वो अपने आप में ही हमेशा, योग निद्रा की बात कल हम लोगों ने की थी, योग निद्रा में हमेशा रमन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कंट्राडिक्टरी लगता है, सारे श्लोक लगते हैं जो मैं ही सब कुछ हूँ, फिर बोलते हैं मैं नहीं हूँ, सब मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ, फिर बोलते हैं मैं उनमें हूँ। तो इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, जो वो किसी चीज से इफेक्टेड नहीं है, किसी चीज में संलिप्त नहीं है, सारा चीज वही करते हैं, करता वही है, लेकिन उन पर न गुण का इफेक्ट है, न किसी विषय का इफेक्ट होता है, न विषय के जो रूप रस गंध स्पर्श जो तन्मात्र का कोई असर नहीं होता है। 9.6 यथा आकाश स्थितो सर्वं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। बोलते हैं जैसे हवा जितना भी बलवान हो, हवा जितनी भी तेज चले, लेकिन वो आकाश के अंदर ही रहते हैं।
हवा जो है आकाश के बाहर नहीं है, क्योंकि सब जगह आकाश है, तो हवा बाहर आकाश के बाहर नहीं जा सकती, चाहे जितना भी बलवान हो। तो वैसे ही सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की, जो भौतिक चीजें हैं या इवन आध्यात्मिक लोग हैं, सब भगवान के अंदर हैं। ये देखिए, ये जो हमने बताया ना, भगवान महाविष्णु के रोमकूप से चिद बीज निकलता है, फिर कैसे जो ये पंच तत्व हैं वो उनको आवृत कर लेती है, फिर उससे एक ब्रह्मांड बन जाता है, फिर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु आके प्रवेश करते हैं, महाविष्णु उस पर नजर डालते हैं, फिर तीनों गुणों का संचार होता है। ये जस्ट जो गैलेक्सी है और ये कैसे भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इदं कृत्स्ना अवसं प्रकृते बसात। तो वो बोलते हैं जो सारा ये जगत जो है हमारे अंदर है, और ये जो है मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से बार बार विलीन होता है। जैसे बोले ना, ब्रह्मा का रात्रि होगा तो सारे लोग विलीन हो जाते हैं, मतलब नीचे के जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ऊपर के भू भुवा स्वर्ग लोक महरलोक तक जो है उनकी ताप से खत्म हो जाते हैं। जनह लोक तपह लोक सत्य लोक रहता है। लेकिन जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो संपूर्ण सृष्टि का महाप्रलय होता है, और कभी कभी एक मनु का शासन जब समाप्त होता है तो भी खंड प्रलय होता है, लेकिन पूर्ण महाप्रलय नहीं होता। लेकिन ब्रह्मा की आयु खत्म होने के बाद, जब ब्रह्मा की आयु 100 साल मतलब 311 ट्रिलियन वर्ष जब उनकी आयु हो जाता है तो फिर महाप्रलय होता है। सारे चीज फिर भगवान के, सारे जीव महाविष्णु के रोमकूप में चले जाते हैं। प्रकृति जो है सब, पृथ्वी जो है गर्म होकर के जल में बदल जाएगा, फिर और गर्मी होगी तो जल अग्नि में बदल जाएगा, और गर्मी होगी अग्नि वायु में बदल जाएगा, और गर्मी होगी वायु आकाश में बदल हो जाएगा, आकाश फिर मन में, मन फिर जो है अहंकार में, अहंकार बुद्धि, बुद्धि महतत्व, इसको प्रधान बोलते हैं। तो भगवान के लोक में थोड़ा सा एक बादल जैसा महतत्व जो है हमेशा रहता है, उसका अलग अपना अस्तित्व रहता है, वो ऐसा नहीं है जो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। महतत्व का अस्तित्व हमेशा रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा रहता है, और फिर जब भगवान की इच्छा होती है तो फैल के सृष्टि की का निर्माण करता है। वैसे सारे जीवात्मा महाविष्णु के रोमकूप में घुस जाते हैं। महाविष्णु के रोमकूप में घुस जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि महाविष्णु हो गए या उनसे मर्ज हो गए, नहीं, आत्मा का हमेशा अपना अस्तित्व बना रहता है। और फिर जैसे ही ब्रह्मा का दिन होगा या दूसरे नए ब्रह्मा आएंगे, या एक मनु के शासन के बाद अगर खंड प्रलय हुआ, तो जब भी प्रलय होता है तो जीवात्माएं महाविष्णु के रोमकूप में प्रवेश कर जाती है, और फिर जब सृष्टि होता है तो रोमकूप से आते हैं। रोमकूप से आते हैं तो फ्रेश आत्मा नहीं है, वो जो संस्कार कर्म संस्कार लेके गए थे, फिर उन कर्म संस्कारों के साथ ही वो उत्पन्न होते हैं। फिर चलते हैं 9.9, एक मिनट पीछे चलेंगे प्रभु। हाँ, 9.9। न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्त तेषु कर्मसु। ठीक है, तो वही फिर उसी चीज को बोल रहे हैं, जो ये कर्म, जो सारे चीज मेरे कारण ही होता है, लेकिन मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूं। उदासीनवत आसीन, मैं न्यूट्रल रहता हूं। न कर असक्त तेसु कर्मसु, मैं उसमें आसक्त नहीं होता, उन कर्मों से आसक्त नहीं होता है। जो भी ये करते हैं, लेकिन वो खुद उस कर्म में बंधते नहीं है। नेक्स्ट। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुवानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो इसमें जो बोल रहे हैं, ये सारी प्रकृति, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुवानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो बोलते हैं ये सारी प्रकृति जो है मेरी ही अध्यक्षता में चलती है। हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, ये जो भी चर और अचर जीव हैं वो सब जो है मेरे ही
कारण मैनिफेस्ट होते हैं, व्यक्त होते हैं, पूरी सृष्टि व्यक्त होती है और फिर इसका अवसान हो जाता है। नेक्स्ट। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मां भवतं महेश्वरम। बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, जो मैं जब इस धराधाम पर आता हूँ, देखिए जैसे द्वापर में भगवान आए, बोलते हैं लेकिन जो मूर्ख लोग हैं हमको नहीं जानते हैं, जो मैं परम परमेश्वर हूँ, मैं महेश्वर हूँ, परम भावम अजानन्तो, मेरे अव्ययी भाव को, मेरे उत्तम भाव को, मेरे भगवान भाव को वो नहीं जानते हैं। मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, जब मनुष्य के शरीर में आता हूँ तो मूढ़ लोग हमको नहीं जानते। ये दिखा रहे हैं ना, दो बेवकूफ लोग हैं, ये देखिए, ये पहचान रहे हैं भगवान को, ये उनको सरेंडर कर रहे हैं, उनको ओबाइसेंसेज कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इनको नहीं जानते। ये जानते हैं हाँ ये जसोदा जी के या नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद महाराज वहाँ के राजा हैं, तो ग्वाल वाल समझ के इनको समझते हैं, साधारण आदमी समझते हैं। तो वही बोलते हैं जो मूर्ख हैं वो जब मैं ये धरती पर आता भी हूँ तो हमको समझते नहीं है, जो मैं परमेश्वर हूँ, मैं महेश्वर हूँ। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। अब बोल रहे हैं जो राक्षसीम आसुरीम चैव, जो इस तरह के राक्षसी और आसुरी व्यवहार के लोग हैं, राक्षसी आसुरी मतलब जो असुर हैं, जो नास्तिक हैं, तो उनके लिए जो है वो मोघासा, उनकी आशा, उनके सकाम कर, उनके ज्ञान हमेशा विफल होते हैं। उनको जो है कोई भी चीज सफल नहीं हो सकता है। जो नास्तिक हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनको मुक्ति की इच्छा जो है वो भी विफल होगी, उनके सकाम कर्म भी विफल होते हैं और उनको सही ज्ञान भी जो है नहीं होता है। उनको प्रयास करेंगे भी, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं मानते हैं तो उनको जो भगवान का लोक है उसके बारे में वो नहीं जान सकते हैं। इवन योगी और ज्ञानी नहीं जानते हैं। जो भगवान को मानते हैं लेकिन मानते हैं भगवान साकार नहीं है, निराकार हैं, तो वो भगवान की परमात्मा और ब्रह्म जो स्वरूप है वहां तक पहुंच के रह जाते हैं। तो जो नास्तिक हैं, जो आसुरी हैं, जो राक्षस हैं, उनको तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है जो भगवान के ज्ञान को जान सके। तो जितना भी ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेंगे, जितना भी ध्यान चिंतन करेंगे, लेकिन वो उसमें विफल रहेंगे। जितना भी वो कर्म करेंगे लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति में सबसे पहला है भगवान की को मानना। जहाँ इस जो सारे जगत का और आध्यात्मिक जगत का कोई नियंता है, कोई नियामक है, और उसमें श्रद्धा करना, ये सबसे पहला चीज है। उसके बाद ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा और ब्रह्म तक हम जो है साधन करके, ध्यान करके, जो हम लोगों ने बहुत सारे चीज देखे, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग और अष्टांग योग और यज्ञ आदि से पहुंचा जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम नहीं पहुंचा जा सकता है। ये जो ज्ञानी और योगी हैं वो जो वैकुंठ लोक और जो ये भौतिक सृष्टि है इसके बीच में खाली जगह है, कारण समुद्र है जहां महाविष्णु शयन करते हैं, तो कारण सागर के ऊपर बहुत बहुत ह्यूज स्पेस है और उसी में वो मुक्त आत्माएं घूमती रहती हैं हजारों लाखों वर्षों तक। और फिर वो अगर वो आगे बढ़े, भगवान की शरण में गए, जो बोले ना जो ज्ञानी है वो भगवान के शरण में आते। तो जो ज्ञानी जब उनको संतुष्टि, जब उनको आनंद नहीं मिलता है परम आनंद, तो फिर वो भगवान की शरण में आते हैं या पता करते हैं भगवान साकार है नहीं है, और जब भगवान की शरण में आते हैं तो फिर वो उस लोक को चले जाते हैं। जो नहीं भगवान की शरण में आते हैं, भगवत भक्ति नहीं करते हैं, तो वो फिर इस धराधाम पर आ जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो अब जो बोल रहे हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, जो महात्मा हैं, जो हमारा भजन करते हैं, वो प्रकृति दैवी, वो दैवी प्रकृति के जो है संरक्षण में रहते हैं।
और वो हमको हमेशा भजते रहते हैं तो हमको प्राप्त करते हैं। ये यहाँ देख रहे हैं, ये एक कहानी है, ये माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी जो हमारे ये ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय है, उसी में है। तो माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन आए। वृंदावन में ये अपना ध्यान कर रहे थे, तो ऐसे ही एक भिक्षा मांगने के लिए कभी कभी नहीं जाते थे या ध्यान में रहे, तो एक बार ऐसे ही भूखे ध्यान कर रहे थे भगवान का। तो एक बालक आया और इनको बोला, इनके लिए एक दूध लेकर आए, देख रहे हैं ना, इसमें एक दूध लेकर आया। बोला भैया वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, तुम जो है खाना नहीं खाए हो, तो जो हमारी माँ ने ये दूध तुम्हारे लिए भेजा है, इसको दूध ग्रहण करो और जाके भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगोगे तो वृंदावन में लोग भिक्षा देंगे ही, ग्रहण करो, यहाँ बिना खाए पिए नहीं रहता है कोई, जो भी हो। तो इन्होंने दूध ग्रहण किया। फिर ये बालक जो है चले गए, ये गायब हो गए। देखे पीछे मुड़ के देखे, जैसे गया फिर देखे उधर, तो ये दिखाई नहीं दिए। फिर रात में इनको स्वप्न में आया, तो भगवान स्वयं स्वप्न में आए और इसको बोले कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम सचमुच मेरे भक्त हो, तुम मेरे साथ आओ। और इनको लेके गए और एक जंगल में वो भगवान की एक मूर्ति थी, जो उस समय मुस्लिम शासन में वो लोग अटैक करके वृंदावन मथुरा उन सब मंदिरों को तोड़ते थे। तो जो पुजारी थे वो भगवान की मूर्ति को जंगल में छिपा करके और डर से भाग गए थे। तो इन्होंने बताया, देखो यहाँ हमको बहुत ठंडा लगता है, ये जंगल में अब हमको ले चलो, और जो गोवर्धन पहाड़ है उसके ऊपर मंदिर बना करके हमको रखो। तो मंदिर अभी भी है, सो हमको ले चलो, हमको थोड़ा बढ़िया से नहला और उसके बाद हमको स्थापित करो। तो फिर माधवेंद्रपुरी और लोगों को बुलाए और वहाँ जो है उनको उठा करके ले गए। उनका नाम सिरनाथ जी, गोपाल इन्होंने अपना नाम बताया था, जो गोपाल है। तो सिरनाथ जी का मंदिर है वो। तो अभी भी है, अभी भी आप जाएंगे गोवर्धन हिल में तो इनका मंदिर है। तो कहने का मतलब है, जो भजंती अनन्य मनसो, जो हमको अनन्य भाव से भजता है, तो उसको मैं, वो मेरे धाम को पहुंचता है। ठीक है, वो चूंकि वो हमेशा दैवी प्रकृति से संरक्षित होता है। नेक्स्ट। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। जो हमेशा कंटिन्यूअसली हमारा भजन करता है, हमारे नाम का कीर्तन करता है, और यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो यत्न करता है दृढ़ संकल्प से, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और जो मुझको प्रणाम करता है, जो हमको रोज भक्ति से प्रणाम करता है, तो वो हमको प्राप्त करता है। तो इसमें सारे चीज बता रहे हैं डायरेक्ट, जो कैसे हमको उपलब्ध किया जा सकता। ये प्रभु, ये एक वीडियो है, नहीं चलेगा गौरव प्रभु? नहीं चलेगा, ठीक है। ये दिखा रहे हैं यूट्यूब से। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं वो फिर टाइम लगेगा, बहुत श्लोक है इसमें, 34 श्लोक है। ये प्रभुपाद हैं और उनके ये जो है अमेरिका में शिष्य वगैरह, और ये देखेंगे वीडियो जो कैसे मस्ती में सब नाच रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करके। तो वो जस्ट दिखाने के लिए, सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा हमारा कीर्तन करता है, हमारे नाम का जप करता है डिटर्मिनेशन से, संकल्प से, तो हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट। ये क्या जा रहा है, इसमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये प्लीज मूव द विंडो अवे ना, पता नहीं क्यों आता है ये, बहुत कोशिश की है। हाँ देखिए। हाँ, पिताहमस्य जगतो माता, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। वो बोलते हैं सभी जीवों का पिता भी मैं ही हूँ, धाता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, पितामह भी मैं ही हूँ, वेद्यम, वेद भी मैं ही हूँ, पवित्रम ओंकारम, और शब्दों में ओंकार मैं ही हूँ, वेदों में जो जानने लायक ओंकार शब्द है वो मैं ही हूँ। ऋक साम यजुरेव च, और ऋक वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ये सब मैं ही हूँ। नेक्स्ट।
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बोलता है मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। ठीक है। गतिर्भर्ता, गति मतलब लक्ष्य, भर्ता मतलब पालन करने वाला, प्रभु, प्रभु में साक्षी, निवास, शरण, सुहृत, सुहृत मतलब सूर्य, मित्र, प्रणव ओंकार, प्रलय स्थान, स्थान मतलब आश्रय, निधानम बीजम और अविनाशी बीज, सब कुछ मैं ही हूं। फिर 9वें श्लोक में बोलते हैं तपामि अहम वर्षा निगृह्यम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत सत असत अहम अर्जुन। तो बोलते हैं ये ताप भी मैं हूँ, वृष्टि मैं हूँ, सूखा मैं हूँ, इमोर्टिलिटी जो अमरता है वो भी मैं हूँ, और मृत्यु भी मैं ही हूँ, और बीइंग एंड नॉन बीइंग मतलब जो चर और अचर ये सारे जीव मैं ही हूँ, सत और असत मैं ही हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञर्दिष्ट्वा स्वर्ग प्राप्तिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादं सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। वो बोलते हैं जो सभी तीनों वेदों का अध्ययन करके और सोम रस प्राप्त करते हैं, और सोम रस को प्राप्त करके वो स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है। जो इंद्र के लोक में जाते हैं, तो वो तीनों, और वो मतलब हमने जो वेद दिया है उसी वेद से सोमरस का ज्ञान लेकर के वो जाते हैं। लेकिन फिर 21वें श्लोक में क्या बोलते हैं, ते ते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और बोलते हैं जो यहाँ जाते हैं, लेकिन जैसे पुण्य के कर्म छीन हो जाते हैं तो वो फिर स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। देख रहे हैं ना, जैसे ये यहाँ कर्म किए फिर स्वर्ग लोक गए, हाँ, ये चलते रहता है। या ये देखते हैं ना वो झूला वगैरह घूमता है, यहाँ ऊपर तक गए और जैसे ही ऊपर से नीचे धराम से आएगा ना तो लगेगा जो कलेजा निकल गया। तो वही है, जो हम जब स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग का भोग करते हैं, और पुण्य छीन होने से जब स्वर्ग से फिर नीचे के लोक में आते हैं तो वो बहुत ही दुख होता है। जैसे उस दिन बताया ना, एक जब इंद्र को अगर एक दिन के लिए सुअर बनना पड़ा और एक आदमी जो धरती पर है उसको सुअर बनना पड़े, तो दोनों के दुख में बहुत का फर्क होता है। क्योंकि जो उच्च सुखों का भोग कर लेते हैं उनको फिर नीचे आने में ज्यादा कष्ट होता है। नेक्स्ट। अनन्यः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आप लोग जानते होंगे। अनन्यः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से जो हमारी उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो प्रदान करता हूं। तो इसलिए जैसे हमने पहले श्लोकों में पढ़ा ना, जो देवताओं का लोग उपासना करते हैं भौतिक प्राप्ति के लिए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की उपासना करने से हमको जो भौतिक उपलब्धि नहीं होगी। भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मतलब जो न अन्य, मेरे सिवा और किसी की उपासना नहीं करता, हमेशा हम पर ही ध्यान लगाता, हमेशा हमको ही स्मरण करता है। ये नहीं कि चलो थोड़ा सा भगवती जी को दिया दिखा दें, थोड़ा सा गणेश जी का पूजा 1 घंटा कर लें, थोड़ा सा ओम दुम दुर्गा नमः शक्ति का उपासना कर लें। ये नहीं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके पास जो है
उसकी रक्षा, और जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ। ये कोई देवता आपको गारंटी नहीं देंगे। जब आप देवताओं की तपस्या करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो आपके जो ये होगा, इच्छा होगी, उसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन उसकी रक्षा की गारंटी नहीं देंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, वैभव लक्ष्मी तो धन देंगे, बस उस धन को कोई चोर लुटेरा नहीं ले जाएगा, इसकी गारंटी लक्ष्मी जी नहीं लेंगी। लेकिन भगवान इसकी भी गारंटी लेते हैं। जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ। तो इतने कन्विक्शन से बोल रहे हैं भगवान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है। नेक्स्ट। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम। बोलते हैं जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो वस्तुतः मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं, जो सही विधि नहीं है। चूंकि यज्ञ में हम देखते होंगे सभी को आवाहन करते हैं। जब भी हम लोग कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जब कोई अनुष्ठान समाप्त होता है तो आहुति देते हैं, तो उसमें सभी देवताओं को भी हम आवाहन करते हैं, लेकिन शुरू हम विष्णु से होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए विष्णु जो है यज्ञ के मुख्य भोक्ता है, लेकिन सभी देवता आते हैं, और जब विष्णु का यज्ञ खत्म होता है तो सभी देवताओं के लिए हम 5, 10, 20 आहुति देते हैं। सूर्य को भी, दुर्गा को भी, जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी को, कुबेर को, सबको आहुति देते हैं। तो इसीलिए ये देख लीजिए, यहाँ भगवान है, इनके नीचे सारे देवता जो भी हमको देते हैं, ये इनके अपने नहीं है, सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो लोग भक्ति करते हैं देवताओं की, प्राप्ति तो यहीं से होती है। भगवान नहीं बोल रहे हैं ये अविधि पूर्वक है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है वृक्ष का। मान लीजिए वृक्ष में आप पानी को पत्ते से धोएं, और उसके ब्रांचेज हैं, उसकी डाली हैं, उसके सब ब्रांचेज हैं, टहनियां हैं, वो सब को आप पानी से, पाइप से पानी दें या लोटा, ग्लास, बाल्टी से धोते रहें पत्ते को, तो उससे पेड़ बड़ा होगा, उसके डंठल मजबूत होंगे, पत्ते आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। आप अगर जड़ में पानी देंगे तो फिर आपको डंठल, टहनी और पत्ते की चिंता नहीं करनी है। तो जब अगर आप पेड़ के जड़ में जल देंगे तो सारे पेड़ों का वृद्धि होगी, पत्ते की, डंठल और टहनी सब मजबूत होगा, फल आएंगे, फूल आएंगे। लेकिन आप पत्ते और डंठल को और टहनियों को धोते रहें, कितना भी पानी पिलाएं, उससे कोई लाभ नहीं है। हम लोग स्कूल में कहानी पढ़ते थे ना, अंगों की हड़ताल। एक बार शरीर के सारे अंगों ने हड़ताल कर दिया। हम लोग मेहनत करते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इतना मेहनत करके पैसे कमा के लाते हैं, और जब खाते हैं तो सारा पेट खा जाता है। तो इसलिए एक बार अंगों ने हड़ताल कर दिया, नहीं हम लोग करेंगे ही नहीं काम, चलो पेट को ही करने दो। हाथ ने, पैर ने, आंख ने, कान ने सब काम करना बंद कर दिया, और फिर आदमी अशक्त हो गया, बेहोश हो गया। तो चूंकि जो हम खाते हैं पेट को देते हैं, तो पेट अपने पास नहीं रखता है, उसको पचा करके फिर उसका रस सभी अंगों को बांटता है, तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है और पूरा शरीर क्रियाशील होता है। इसलिए भगवान अगर संतुष्ट हैं, भगवान अगर खुश हैं, तो फिर हमको चिंता, नीचे की चिंता नहीं करनी है। आप मान लीजिए कुछ धर्मशाला बना दिए, किसी को स्कॉलरशिप दे दिए, कुछ और दान धर्म कर दिए, गरीबों को खाना खिला दिए, तो कितने कुछ दिन खिलाएंगे, 10 दिन, 20 दिन, 100, 1000, लाख, करोड़ लोगों को आप दान दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, और आवास दे सकते हैं। उससे समस्या समाप्त नहीं होती है। लेकिन अगर भगवान प्रसन्न है तो भगवान के पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है। वो तो चाहे तो कोयले को जो है सोना बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर सुधर करने का है, 12 इलेक्ट्रॉन या जो भी कार्बन में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो सोना हो जाएगा, सोना से उतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कोयला हो जाएगा। भगवान के लिए ये सब चीज कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं। ये ऐसे ही जैसे पेड़ के जड़ में जल नहीं दे करके पेड़ के टहनी और पत्तों पर जल दिया जाए। नेक्स्ट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। भगवान बोलते हैं जो हमको पत्ता, फूल, फल, जल भक्ति पूर्वक प्रदान करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ और उसको
भक्ति प्रदान करता हूँ। तो यहाँ वही दिखा रहे हैं। तो भगवान बहुत ज्यादा चीज मांग भी नहीं रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो जो उसकी आसानी से सभी लोग देख सकता है, लेकिन भक्ति पूर्वक। कोई बहुत 56 भोग लेके आएगा और उसमें श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, ऐसे लोग भगवान को ला के पटक दिया खाइए, हाँ, तो और होटल से खरीद के ले आया, तो फिर भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए उसमें बहुत स्पष्ट बोला जो उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए, उनको पत्ता फूल सिर्फ जल भी देने से वो प्रसन्न होंगे, लेकिन वो श्रद्धा से देना। यो में भक्त्या प्रचति, भक्ति भाव से जो हमको प्रदान करता है, तद हम भक्ति मुहूर्तम असनामी प्रति आत्मना, मैं उसको ग्रहण करता हूँ और उसको भक्ति और आगे की भक्ति प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसमें इन्होंने ये नहीं बोला है जो हमको कोई मांस और मदिरा ये देते, जो बोल रहा है उतना ही देना है। इसलिए मांस और मदिरा भगवान को नहीं खिलाना चाहिए, जो चीज नहीं बोला है वो नहीं देना है। समोहम सर्वभूतेषु न म द्वेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। बोलते हैं मैं सम हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी को पसंद करता हूँ। ये नहीं, ये हमको बहुत पसंद है, ये नहीं पसंद है, नहीं। भगवान ने नियम बना दिए हैं, उस नियम के हिसाब से आप कर्म करेंगे, उसके हिसाब से फल मिलेगा। पुण्य करेंगे पुण्य का फल मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे पाप का फल मिलेगा, नरक जाएंगे और जन्म मरण के बंधन में घूमते रहेंगे। लेकिन बोलते हैं जो हमको भजता है तो मैं उसको प्रिय हूं और वो हमको प्रिय है। जैसे यहाँ भक्त और भगवान जो आपस में गले मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पर भगवान का वो सिद्धांत खत्म हो जाता है। भक्त के लिए फिर वो नियम वगैरह को नहीं देखते हैं। नियम सिर्फ उसके लिए है जो भगवान को भक्ति नहीं करता है, वो भगवान के नियमों में बंधा है। ऐसा नहीं है भगवान को नहीं मानता है, राक्षस असुर जो है इनको दिन रात गाली दे तो ये उसको जो है बोलेंगे नहीं तुम गाली देता है तो उसको कुछ खराब कर देंगे, जो नहीं देता है उसको अच्छा नहीं। नियम बना दिए भगवान, ये कर्मों का ये फल, ये कर्मों का ये फल, उसके हिसाब से फल मिलेगा, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो इनके भक्त हैं तो वो बोलते हैं वो हमको प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं, तो फिर उसमें इनका नियम कानून नहीं चलता है। फिर जो वो कुछ भी कर सकते हैं वो नियम कानून के ये में जाके। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। अब बोलते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपि चेत्सु दुराचारो, कोई दुराचारी भी है चेतना से, भजते माम अनन्य भाग, कुछ दुराचार कर लिया, गलत काम कर लिया, लेकिन मेरे भजन में अनन्य भाव से लग गया। सम्यक व्यवसितो ही सा, व्यवसितो मतलब संकल्प से, एक संकल्प लेकर के और मेरे भजन में लग गया, तो मैं उसको भी साधु ही मानता हूं। तो इसीलिए कुछ लोगों को इस तरह का होता है, हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, हमने बहुत व्यभिचार किया है, हमने बहुत मर्डर किया, चोरी किया, बेईमानी किया, हम कैसे भगवान की शरण में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान क्लियर बोलते हैं अपनी चेत सु दुराचारो, जो चेतना में दुराचारी चेतना में था लेकिन अब वो हमको अनन्य भाव से भजन करता है, सम्यक व्यवसितो, संकल्प सहित। संकल्प सहित मतलब अब उस भाव में वो नहीं जाएगा, अब दुराचार नहीं करा, जो दुराचार कर लिया सो कर लिया, अब फुल स्टॉप, और भगवान को अर्पण करता है, तो भगवान उसको साधु ही मानते हैं। वो उसके दुराचार को भूल जाते हैं। दुराचार को भूल जाते हैं कहने का मतलब जो उसके किए गए कर्मों का फल है, उस फल को भगवान जला देते हैं, निर्मूल कर देते हैं। उस भक्त को जो दुराचार में किए गए फलों को भोगना नहीं पड़ता। यहाँ एक पहले भी कहानी सुनाए थे, देखिए चैतन्य महाप्रभु और ये है नित्यानंद है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। तो ये आज से 500 साल 526 साल पहले इनका अवतार हुआ था। हमने चर्चा की थी, जो ये ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय उन्हीं से चला है। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, फिर प्रभुपाद ने उसको गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़। उनके समय 2 जगाए मधाए थे। ये बहुत ही आसुरी वृत्ति के ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत ही आसुरी वृत्ति के थे, बहुत शराब पीते थे, हल्ला हंगामा करते थे इधर उधर। तो एक बार इनको ये नित्यानंद प्रभु ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए, तो इन्होंने उनका मार दिया, उनके बोतल मार दिया सर पर और सर फूट गया।
तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला ये आए, इमीडिएटली इन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया इन लोग को मारने के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका, नहीं प्रभु आप करुणा के अवतार हैं, आप महामंत्र देने आए हैं, हाँ आप तो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, ऐसा मत करिए, इनको क्षमा कर दीजिए। फिर प्रभु ने क्षमा कर दिया और फिर ये दोनों बहुत भक्त बन गए, इनके बहुत बड़े भक्त हो गए, ये लोग काफी बड़े भक्त हुए। तो कहने का मतलब है जब दुराचार करने के बाद भी अगर समर्पण हो जाता है तो फिर हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, हमने क्या किया नहीं किया। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक जो भी किया उसको चिंता करके जब हमारा क्या होगा और इतने पाप किए वो किए, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान जब ग्रहण कर लेते हैं भक्त को तो वो जो है बहुत बड़े पाप को भी छोटा कर देते हैं। हाँ, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होना था, हवाई जहाज में एक्सीडेंट होना था, ट्रेन में एक्सीडेंट होना था और मृत्यु होनी थी, तो आपको कहीं जो है कांटा गड़ जाएगा, कहीं थोड़ा हाथ पैर कट जाएगा, हाँ तो उसको बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उसके साथ ये मतलब ऐसा नहीं है जो उसके साथ कुछ पक्षपात करते हैं या ऐसा नहीं है, बट इनका नियम है, उस नियम के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो अब बोलते हैं जो धर्मात्मा है और जो भगवान को समर्पण करते हैं वो शांति को प्राप्त करते हैं। शांतिम अधिक शाश्वत शांतिम अधिक निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही, बोलते हैं हे कुंती पुत्र इसकी घोषणा कर दो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ इतना इस जो ये राजयोग और राजगुह योग है इसमें भगवान इतने कन्विक्शन से बोलते हैं, जो हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो मेरे भक्त को कोई विनाश नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए आप लोग तो जानते हैं प्रहलाद महाराज की कहानी, प्रहलाद के लिए क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, उनको पहाड़ के ऊपर से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, आग में डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उनको लेकर के एक दिन मारने आया, बोला आप बोलो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, इस खंभे में तुम्हारे भगवान है? बोला हाँ इसमें है, और नरसिंह देव उसी से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को का वध किया। तो इसलिए भगवान की जो घोषणा, बोले अर्जुन घोषणा कर दो जो मेरे भक्तों का विनाश कोई नहीं कर सकता है, न मे भक्त प्रणश्यति। नेक्स्ट, ये अंतिम श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि त्वत्वा एवं आत्मान मत्परायण। बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना मेरा चिंतन करो, ये अंतिम सारांश है। भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु और मुझको नमस्कार करो, हाँ और हमको कंप्लीट सरेंडर करो तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास पहुंचोगे। ठीक है, इसको हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे सभी लोग मिलके। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि इक्त्वा एवात्मानं मत्परायण। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ। अनम्यूट कर दीजिए लोगों को। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है, कल भी हम लोगों ने प्रश्न आंसर सेशन नहीं किया था, तो अगर किन्हीं का कल से संबंधित प्रश्न हो या आज के संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। एक एक करके नहीं तो फिर इको आता है, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। यस प्रभु। फिर मेघा माता जी, फिर विजय प्रभु, फिर डॉक्टर अजय शुक्ला, एक विशाल प्रभु है तो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी जिज्ञासुओं को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु 2 श्लोकों में आपने बताया कि अनन्य प्रेम से, वो वर्ड अनन्य प्रेम थोड़ा समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है? अनन्य का मतलब अनन्य का जो लिटरल मीनिंग हुआ, ना अन्य, दूसरा कोई नहीं, अनन्य
ना अन्य, ठीक है ना। तो ना अन्य मतलब हम लोग के हमेशा टेंडेंसी रहती है ना, जो हम लोग का संस्कार है, कोई घर में, किसी के घर में गणेश की पूजा होती थी, किसी के घर में बचपन से दुर्गा जी की पूजा होती थी, किसी के घर में हनुमान चालीसा होता था। हालांकि हम लोग जितने भी हैं भारत में, जिस देवी देवता की भी पूजा हो, लेकिन शादी और श्राद्ध और जनेऊ होता है तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते ही हैं। तो हम लोग प्रायः मानते हैं कि सत्यनारायण भगवान जो है सबसे ऊपर। सत्यनारायण मतलब विष्णु ही हुए ना, कृष्ण के ही एक्सपेंशन हुए, विस्तार हुए। तो लेकिन हम लोग सबका संस्कार है, तो अब हमको बोला जाता है नहीं छोड़ दो, शिव जी का पूजा छोड़ दो, हनुमान जी का छोड़ दो, गणेश जी का छोड़ दो, दुर्गा माता का छोड़ दो, सरस्वती का छोड़ दो, गायत्री का छोड़ दो। हाँ, तो इसी को बोलते हैं अनन्य, ना अन्य और किसी की, जो हमको। क्योंकि आप जब थोड़ा सा सोचेंगे जो थोड़ा शिव जी की भी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा ये भी जाप कर लेते हैं, थोड़ा गणेश जी का भी एक माला जप कर लेते हैं, थोड़ा दुर्गा जी का भी कर लेते हैं, इसका मतलब आप ना अन्य, अनन्य भाव नहीं आया। अभी भी आपको भगवान में पूरा पूरा विश्वास नहीं है। जो अगर भगवान की जो है आराधना करेंगे तो बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है। कल हम लोगों ने पढ़ा ना, कल जो अंतिम श्लोक था उसमें भगवान ने क्या कहा, ऐसा नहीं है जो हमको भक्ति भाव से भजते हैं उनको बाकी चीजों की प्राप्ति नहीं होती है, जो सकाम कर्म से, जो ज्ञान मार्ग से, जो यज्ञ मार्ग से जो उन लोगों को, जीवों को प्राप्ति होती है, वो सब भी उनको मिलता है भक्त को, और भगवान मिलते हैं, क्योंकि बाकी सब तो भगवान के अधीन ही है। अनन्य भाव का ही मतलब हुआ जो हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम अब आ गए हैं, अब जिनकी भी आराधना हम सभी लोग, कोई भी तो भगवान के पास, हम लोग भी तो कोई गायत्री का ये करके, कोई गणेश जी के भक्त थे, तो किसी देवी देवता का अगर आप निष्काम भाव से आराधना करेंगे तो वो आपको भगवान के पास ला देंगे, क्योंकि परम सत्य का दर्शन भगवान ही करा सकते हैं। सकाम भाव से करेंगे, धन चाहिए तो धन दे देंगे, विद्या चाहिए विद्या दे देंगे, बीमारी से मुक्ति चाहिए बीमारी से मुक्त करा देंगे, लेकिन वो परम मुक्तावस्था तक नहीं ले जा सकते। तो आप निष्काम भाव से देवी देवता का करेंगे, आपको भगवान के शरण में पहुंचा देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकाम भाव से करेंगे तो आपके जो कामना है उसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए अनन्य भाव का मतलब वही हुआ। जब तक आपका माइंड सेट थोड़ा भी इधर उधर भटका तो इसका मतलब आप पूर्ण रूप से भगवान में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कैसे होगी? विश्वास पर। विश्वास और श्रद्धा एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब विश्वास करेंगे और जब भगवान धीरे धीरे रेसिप्रोकेट करेंगे तब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। एक बार में श्रद्धा नहीं आ सकती है कि नहीं? लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। आंख मूंद के जहां विश्वास करेंगे, थोड़ा दिन विश्वास करके देखिए, साल 2 साल विश्वास करके देखिए, आराधना करिए, उपासना करिए, जैसा लोग बताते हैं, जैसा आचार्यों ने बताया है, जैसा प्रभुपाद ने बताया है, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, करिए। और वो फिर जैसी जैसी भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा और ज्ञान की किरण आएगी, तब आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो गहन विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास में कोई फर्क नहीं है। विश्वास प्रारंभिक रूप है, और वही जब विश्वास दृढ़ होते चला जाएगा तो वही श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए। कोई सोचे हमको श्रद्धा नहीं होती है, हम कैसे आरती करेंगे? नहीं होगी, श्रद्धा शुरू में नहीं होगी। श्रद्धा तो तभी होगी जब आप विश्वास करेंगे, और विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होगा, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे आपको, तब जब आपको अनुभव होगा तो स्वतः श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे किसी आदमी को देखते हैं, कोई आपके ऑफिस में आया या कोई दोस्त हुआ, तो तुरंत आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ती है। धीरे धीरे आपकी दोस्ती हुई, धीरे धीरे उसके चरित्र को जानते हैं, जहाँ कितना अच्छा आदमी है, कितना भला आदमी है, कितने हमारे बारे में सोचता है, कितना पवित्र आदमी है, कितना ज्ञानी आदमी है, धीरे धीरे आपकी श्रद्धा बढ़ती है। तो लेकिन विश्वास करके आप दोस्ती करते हैं, और कालांतर में आपका विश्वास इतना बढ़ जाता है जो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। अनन्य भाव का मतलब वही हुआ, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से, इधर उधर कहीं दिमाग को नहीं भटकाना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। नेक्स्ट प्रभु। मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। आपने एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि जब कृष्ण जो है वो आंख खोलते हैं तब माया में हलचल होती है, और उस वक्त माया गर्भवती होती है। सो मेरा डाउट ये है कि माया गर्भवती होती है या पृथ्वी होती है? उधर थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु जी। अगर वैसा होता है तो फिर क्या होता है, वो जानना था। कृष्ण नहीं करते हैं, ये जो भौतिक सृष्टि है वो उनके विस्तार महाविष्णु, हमने बताया ना, जो कृष्ण से नीचे वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक का मालिक जो है नारायण है,
ठीक है ना, उसमें भी बहुत लोक हैं लेकिन उसके मुख्य नारायण। वैसे ही भौतिक लोक की जिम्मेवारी महाविष्णु को दी गई, ठीक है। महाविष्णु का भी अपना लोक वैकुंठ में है, तो महाविष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं। तो हमने बोला महाविष्णु के ही लोक में महतत्व है। महतत्व जो है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, उसको प्रधान बोलते हैं। तो महतत्व से प्रकृति बनती है, ठीक है। तो जब भगवान की सृष्टि की इच्छा होती है तो फिर महतत्व आ जाता है। महतत्व जो है बुद्धि के रूप में, बुद्धि अहंकार, अहंकार मन, मन आकाश, आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्नि जल और जल पृथ्वी। इस तरह से 8 भूत आ जाते हैं, ठीक है। फिर महाविष्णु के रोमकूप से चिद बीज निकलता है। चित जो ज्ञान का चिद बीज, जो वो सोने का अंडा जैसा, और वो जैसे ही आता है ये जो 8 प्रकृति हैं उनके चारों तरफ आवृत कर लेती हैं। लेकिन अभी भी पृथ्वी में गंध का गुण नहीं है, जल में रस का गुण नहीं है, वायु में स्पर्श का गुण नहीं है, अग्नि में ताप का गुण नहीं है, ठीक है। ये सब में कोई गुण नहीं है, ये जड़ है। फिर महाविष्णु अपनी जो है आंख खोलते हैं और उस पर दृष्टि डालते हैं, तब वो तीनों में शक्ति का संचालन होता है। वो शक्ति है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इसी को बोलते हैं माया का प्रेग्नेंट होना। माया देवी भगवान, लेकिन भगवान आंख खोल करके, इसीलिए बोलते हैं महाविष्णु कभी भी माया देवी से संपर्क में नहीं आते हैं। वो हमेशा रमा देवी के संपर्क में रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन सिर्फ आंख खोलते हैं। उनकी इच्छा हुई तो ये सब महतत्व वगैरह आ गया। फिर उन्हीं के रोमकूप से जो है चिद बीज आ गया, और फिर उन आंख जैसे उन्होंने दृष्टिपात किया प्रकृति पर, तो प्रकृति गर्भवती हो गई, मतलब उसमें वो गुण का समावेश हो गया। अब जो है पृथ्वी में गंध आ गया, जल में रस आ गया, और जैसे ही ये आया तो अब फिर जीवात्मा, फिर गर्भोदकशाही विष्णु जो है उस प्रकृति में, उस ब्रह्मांड में घुस जाते हैं, ठीक है। महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकशाही विष्णु निकलते हैं, वो ब्रह्मांड में घुस गए। अब जो है महाविष्णु के रोमकूप में जितनी जीवात्माएं हैं, फिर वो निकल करके इस लोक में आती है और अपने संस्कार के हिसाब से फिर शरीर ग्रहण कर लेती है। कीड़े मकोड़े का, पेड़ पौधे का, मनुष्य का, देवता का, जो भी संस्कार लेके गया निकल के। इस तरह से आत्मा भी उन्हीं के रोमकूप से निकली, महतत्व भी उन्होंने ही भेजा, इच्छा उनकी हुई, फिर उन्होंने दृष्टि संचार किया, तो माया जो है हलन चलन आ जाता है। नहीं तो उसके पहले जब तक उनका दृष्टिपात नहीं होता है तो ये जड़ रहता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्रभु जी, डॉक्टर विजय, मिस्टर विजय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? आप तो, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इसको समझा रहा है अकल के बारे में। जी तो एक जो बच्चा, विजय प्रभु आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप प्लीज टाइप कर दीजिए अपना क्वेश्चन। तब तक दूसरे को ले लीजिए। हाँ, डॉक्टर अजय, अजय प्रभु, डॉक्टर अजय प्रभु, डॉक्टर अजय शुक्ला, बिहेवियर साइंटिस्ट। हाँ, शुक्ला प्रभु। डॉक्टर अजय प्रभु, मिस्टर ए.के. चौधरी प्रभु, ए.के. चौधरी प्रभु, आप नेक्स्ट है लाइन में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा जो है वो अन्यन से ही रिलेटेड है। मेरे पूछने का मतलब हुआ, अन्यन को इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं, इसका पर्यायवाची अद्वितीय होता है। क्या बोले प्रभात जी? अद्वितीय, 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 और इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। जी जी। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों की होगी, कि आज से बचपन से 50 साल से करते आ रहे हैं सारी देवता का पूजा। जी जी जी। अब एक छोड़ देने और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को भजना, मतलब फिर शांति जैसी माहौल मन में रहने का मैं आगे भी करना चाहूंगा। तो अगर ये यूनिक हैं, अद्वितीय हैं,
तो अगर हम ये मान के करते हैं कि भाई शिव भी आप ही हैं भगवान, दुर्गा भी आप ही हो, सीता भी आप ही हो, राम भी आप ही हो, आप ही अद्वितीय हो, और उनकी विशेष पूजा करें भगवान कृष्ण की, और बाकी लोगों का भी ध्यान जाप करते चलें, तो इसमें कोई हर्ज है क्या? कोई गलती भी है इसमें? नहीं, हर्ज एक तो ही बोले जो भगवान खुद बोल रहे हैं, अनन्य चिंतयन्ते माम। अद्वितीय आपने सही बोला, यूनिक या अद्वितीय का मतलब वही हुआ, न द्वितीय। अद्वितीय मतलब और दूसरा कोई नहीं है, आप ही है कि नहीं? तो उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज है जो उपासनात्मक विधि है, भगवान की उपासना करने की जो विधि है वो समाप्त नहीं होता है। आप अनन्य भाव से भगवान कृष्ण की सिर्फ साधना करेंगे तो भी 24 घंटा सफिशिएंट नहीं पड़ता है। जैसे आपने सवेरे उठा, उनके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया, कपड़ा बदला, नहलाया, फिर शाम का नाश्ता कराया, रात्रि का नाश्ता कराया, फिर कपड़ा बदला, सुलाया, भजन किया, कीर्तन किया, श्रवण किया, कुछ देर गीता सुना, भागवतम सुना, भगवान की लीला सुनी। ये सब भक्ति मार्ग जो नवधा भक्ति है उसमें आता है। हाँ, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, हाँ, और आत्मनिवेदनम, फिर साक्ष्य दास वगैरह, और फिर उनका पूजन अर्चन सब है, आरती करना। तो एक तो वो संभव, एक भगवान कृष्ण की उपासना आप नहीं कर सकते हैं 24 घंटे में। तो दूसरे देवताओं की ऐसे देखिए, खाली जप कर लेना एक चीज है, लेकिन हर देवताओं का एक उपासना का ये है, विधि है। सिर्फ मंत्र जपने से नहीं होता है, उसकी उपासना विधि है। तो वो करने का समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही को कर सकते हैं, दूसरे को कर भी नहीं सकते हैं अगर पूर्ण रूप से करें। अदरवाइज जपने में कुछ हानि नहीं है। लेकिन हमने जैसे बोला ना, मान लीजिए आपके हाई स्कूल के टीचर से आपको बहुत प्यार है और बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मानते हैं, लेकिन हाई स्कूल के टीचर आपको कितना भी पढ़ाएं, है कि नहीं, लेकिन आपको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दिला पाएंगे। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, वो टीचर आपके कितने भी अच्छे हों, कितने भी दोस्त हों। तो इसलिए आप जब जाएंगे हाई स्कूल के टीचर के पास, तो आप नमस्कार करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उनको श्रद्धा देंगे, उनके यहाँ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन आना तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग डिग्री लेना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर से पढ़ना पड़ेगा, और डिग्री लेने के लिए कॉलेज में आना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो उनको इस हिसाब से छोड़। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब उनको श्रद्धा नहीं रहेगी उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा है, उन्होंने पढ़ाया, उनके चलते हम कम्पीट किए और हम आए हैं, तो उनको भूल नहीं सकते हैं। जब कुछ विशेष दिन है तो हम उनके यहाँ जाएंगे भी, है कि नहीं। लेकिन इनकी जो उपासना पद्धति है उसमें कटिंग करके, कर्टेल करके और फिर उनकी करेंगे, तब अनन्य नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान कई जगह बोलते हैं अनन्य अनन्य, हर बार बाद में भी बोले जो सिर्फ हम ही में अनन्य मन से। तो इसीलिए ये नहीं है जो हम शिव के भक्त हैं तो शिव को, जैसे मान लीजिए हम, आप लोगों को अनुभव होगा कि नहीं, जब कभी प्रधानमंत्री वगैरह कोई उद्घाटन करने आते हैं तो हम लोगों का अनुभव है, जब प्रधानमंत्री बैठे रहेंगे मंच पर और उसके बगल में राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, और उसके पहले कलेक्टर रहता है, और उसके नीचे एसपी रहता है। तो कलेक्टर, चूंकि हम लोग वहाँ काम कराते हैं तो कलेक्टर से दोस्ती है, एसपी से दोस्ती है। अब माला पहनाने जाएंगे, प्रधानमंत्री को हम नहीं जानते हैं लेकिन जाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को माला पहनाने गए या उनको चाय देने गए, बिस्किट देने गए, और आपको रास्ते में कलेक्टर साहब मिल गए रास्ते पर, उसके नीचे एसपी खड़े रहते हैं, अब उनको माला पहना दें या उसको चाय दे दें पहले, भैया ये तो डेली मिलना जुलना है, इनसे तो बहुत दोस्ती है, तो वो कलेक्टर खुश होगा क्या? नहीं खुश होगा। वो मुख्यमंत्री को पहना देंगे, मुख्यमंत्री खुश होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि वहां जितने भी लोग हैं सबकी यही चिंता है प्रधानमंत्री को खुश करना है, या राष्ट्रपति, जो भी वहां के मुख्य हैं, सर्वोच्च हैं, उनको खुश करना। एवरीबडी इज वरीड। कोई आपकी, अगर आप ये गलती कर देंगे तो आपको जो मुख्यमंत्री जो है आपको ये कर देगा, जेल में भेज देगा, या कलेक्टर जो है आपको ये कर देगा। कोई खुश, सबका एक ही ध्यान है जो प्रधानमंत्री खुश होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो वैसे ही है, जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति कराने की जिम्मेवारी सभी देवताओं की है। सभी देवता चिंता में रहते हैं कि कैसे धरती के लोग भगवान की भक्ति में लगे, और भगवान खुश तो देवता खुश, है कि नहीं। तो इसीलिए देवता खुश, आप अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो देवता आप पर प्रसन्न होंगे और आपको सहायता करेंगे। और अगर आप भगवान को खुश नहीं करेंगे, देवता को करने के ये करेंगे, तो उससे देवता खुश होंगे, उनकी आराधना करेंगे तो अपना ये देंगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे तो देवता ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि देवताओं की जिम्मेवारी है। जैसे प्रधानमंत्री है तो हम मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी और जो मंत्री हैं और हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं, उन सब की जिम्मेवारी होता है प्रधानमंत्री खुश जाए। और हमने अगर प्रधानमंत्री की जगह अपने चेयरमैन को जाकर माला पहना दिया, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा, चेयरमैन सबसे पहले हमारा नौकरी
सस्पेंशन ऑर्डर इशू करेगा, करेगा कि नहीं? उतने नहीं देखेगा हम चेयरमैन को जानते हैं तो उसको माला पहना दिया, पहले उसको बिस्किट दे दिया। तो यही प्रोटोकॉल वहां भी लागू होता है। भगवान को खुश करना, सारे देवता खुश। इसलिए ये चिंता नहीं करना है हम शिव जी को छोड़ दें, दुर्गा जी। अब शिव जी की भक्ति अगर आप निष्काम भाव से करेंगे तो वो आपको हरे कृष्णा के पास ला कर रख देंगे। भैया मुक्ति तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मुक्ति देगा उसके पास पहुंचा दिया। यही उनकी जिम्मेवारी, सभी देवताओं की यही जिम्मेवारी है। और ये अनुभूत तथ्य है, जो देवी देवताओं की निष्काम साधना करते हैं उनको देवी देवता आगे पहुंचा देते हैं, और जो देवी देवताओं की सकाम साधना करते हैं उसके इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो भगवान तो यहाँ बोलते हैं तुमको जो चाहिए, तुम्हारे पास जो है उसकी भी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो दूंगा भी। और कल भी हमने पढ़ा, भगवान बोले जो बाकी जितने भी क्रियाकलाप हैं, उपासनाएं हैं, भक्त को वो सारे ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाए। जैसे आपने भगवान को जान लिया तो उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश को तो देखेंगे ही ना, उनके शरीर से जो चेतना निकलती है उसका अनुभव तो आपको होगा ही। लेकिन जो उनके प्रकाश को देखेगा वो भगवान को देखेगा, ये जरूरी नहीं है। जो उनके परमात्म रूप का अनुभव किया वो भगवान के आनंद स्वरूप का अनुभव करे, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो भगवान को सशरीर मिलेगा तो प्रकाश और आनंद, ये परमात्मा ज्ञान शक्ति तो उन्हीं से निकलती है, तो उसकी प्राप्ति भक्तों को स्वतः हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात इसमें ये पूछना था गुरुदेव जी, कि यदि भगवान कृष्ण को मध्य में, मुख्य में रखते हुए बाकी उनको प्राथमिकता देते हुए उनकी पूजा करने के बाद बाकी लोगों का भी अगर भोग लगाया, बाकी देवता का भोग लगाया जाए, या जो आज 50 साल 60 साल से करते आ रहे हैं, 40 साल से, चूंकि मन अशांत हो जाएगा सब छोड़ देने के बाद, तो इसमें कोई ये तो नहीं है ना कि मुख्य बिंदु उन पर होना चाहिए भगवान कृष्ण से, लेकिन उनके साथ मुख्य और प्रधान जो मेन गोल, व्हाट इज आवर गोल, मेन गोल अगर उधर है, और बाकी जिनका करते आए अगर करते रहे मन की संतुष्टि के लिए, तो कोई हर्ज तो नहीं है, उससे भी तो कर सकते हैं, प्रारंभ में कर सकते हैं। लेकिन वही हमारा कहने का मतलब है, अशांति क्यों होती है? अशांति होती है भय से। हमको लगता है भाई 50 साल से इनका पूरा, हमारे बाप दादा सब इनको करते रहे, ये प्रतिष्ठापित हैं हमारे मंदिर में, अब हम मंदिर से निकाल के इनको फेंक दें। ये सही बात है, जो प्रतिष्ठापित देव हैं, स्थापित देव हैं, जिनमें जो है प्राण स्थापित किए गए हैं, उनको उठा के आप कहीं भी फेंक नहीं सकते हैं। उनको या तो किसी जो है, जो देवी देवता में आस्था रखते हैं, उनको दे दीजिए भाई ये हमारे यहाँ प्रतिष्ठापित देवता है, इनकी आप ये करिए, एक वो है। नहीं तो कहीं सही जगह पर उनको रखिए, और इसमें टाइम लगेगा, तो प्रारंभ में रखने में कुछ ये नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है अशांति का कोई कारण नहीं है। जब आप समझेंगे, आप जब भगवान की आराधना कर रहे हैं तो वो प्रसन्न हो रहे हैं, वो दुखी नहीं हो रहे हैं, देखो हमको छोड़ दिया। एब्सोल्युटली नो। जैसे मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री खुश तो चेयरमैन, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सब खुश, वो दुखी तो सब दुखी, आपको कोई नहीं हेल्प करेगा। प्रिविलेज मोशन आप पर लग जाएगा, जो तुमने प्रधानमंत्री की जगह तो आप जेल चले जाएंगे, है कि नहीं? जी जी, प्रोटोकॉल को पालन। एक और बात, बस बहुत छोटी सी बात है कि मान लीजिए हमारे गुरु जो हैं वो भगवान राम के भक्त हैं, और उन्होंने अभी तक वही शिक्षा दिया और राम की पूजा करते आए। अब राम को छोड़ दें, भगवान श्री कृष्ण का करें, तो गुरु की अब अवहेलना नहीं होगी? नहीं, वही बोले, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। वो भगवान के लोक के नीचे है। खाली है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम में भी एक आनंद है। लेकिन वो आप जैसे देखिए, कृष्ण का जो बचपन का नटखटपन है, कृष्ण की जो बांसुरी का माधुर्य है, कृष्ण का जो गोपियों से संबंध है, हमको देखने में लगता है जो कृष्ण रास लीला करते हैं, वो रास लीला करते हैं जिन गोपियों के साथ, आप जानते हैं वो कौन है? वो जब भगवान राम त्रेता में आए थे तो सभी साधु मुनि, जब वो आए लौट के, सभी साधु मुनि उनके यहाँ गए, भगवान हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, हमको आप पत्नी रूप में स्वीकार करिए और हमारा जन्म। तो राम बोले भैया मैं ये लीला जो मेरी है, ये लीला हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम की है, तो मैं एक के सिवा शादी नहीं कर सकता। इसलिए जब द्वापर में आएंगे तो उस समय हम तुम सभी से शादी करेंगे, या तुमसे हमारा संबंध, प्रेम का संबंध होगा। इसलिए वो सारी गोपियां जो हैं, वो सारे ऋषि मुनि हैं, जो जिन्होंने वृंदावन में जाके या उसके आसपास जाके पैदा लिया, या मथुरा में पैदा हुए, या द्वारका में जाके पैदा हुए भगवान के सानिध्य के लिए। भगवान की 16,108 रानियां हैं, तो वो सब वही ऋषि मुनि हैं जिनको उन्होंने उस समय बोला, जो उनके जो माधुर्य रस में आना चाहते हैं, तो वो सब
वही ऋषि मुनि है, वही सब भक्त हैं। तो देखने में लगता है जरे वो तो रासलीला करते हैं, वो क्या है, ये है लोग जो सोचते हैं, सहजिया जो हैं या दूसरे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण की करेंगे तो उससे राम के दुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कर रहे हैं तो आप राम का ही कर रहे हैं। राम और भगवान कृष्ण एक ही है कि नहीं? डिफरेंट युगों में, डिफरेंट कल्पों में वो डिफरेंट लीला करने के लिए आते हैं, इसलिए उनमें दोनों में कोई फर्क ही नहीं। जी, बड़ी कृपा, बहुत अच्छी ढंग से बताए। जय श्री कृष्णा। बहुत वक्त दिया आपने, बहुत। जय श्री कृष्णा। बहुत हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। बीच में डीलिंग हो गई थी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली पहली बार सुन रहा हूँ भगवत गीता, और बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं। 9 दिन से मैं सुन रहा हूँ। मुझे एक पर्सनल कल के बारे में एक आया, जो मृत्यु के बारे में। जो बच्चे होते हैं, जन्म से पहले भी मृत्यु हो जाते हैं, या जन्म के तुरंत मृत्यु हो जाते हैं, या बीच में उसका जरा व्याधि जो होता आप बोलते थे, वो नहीं करके भी मृत्यु हो जाता है उनका। तो उनका क्या फल है, या वो क्या होती है उसके बाद, और क्यों ऐसी मृत्यु होता है उनका? हाँ जी, वही बोले ना, जो जब आदमी भगवान के लोक से इस पृथ्वी लोक पर गिरता है, ठीक है ना, हमने बताया ना, जो कैसे हम सब जब भगवान के लोक में हैं, भगवान के साथ हैं, लेकिन हमारी इच्छा होती है जैसे सब भगवान की सेवा में लगे हैं, मेरी भी सेवा ऐसी हो। जब कंट्रोल की भावना आती है, या भगवान से ईर्ष्या होती है, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सब उन्हीं की सेवा करते हैं हमको, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, तो जो जीव की इच्छा होती है उसकी वो पूर्ति करते हैं। तो फिर आपको भेज देते हैं, जाओ उस लोक में। जैसे आपका बच्चा है, आप देखेंगे छोटा बच्चा को खिलौना देंगे या बोलेंगे पढ़ो, मनोहर पोथी पढ़ो, तो नहीं पढ़ेगा। और वो दो भाई बहन मिलके क्या करेगा, बाप की तरह पैंट शर्ट पहनेगा, ऑफिस जाने का जो है नकल करेगा, माँ की तरह खाना बनाने का करेगा, क्योंकि उसको लगता है बाप माँ बनना चाहता है कि नहीं? तो बच्चे को आप खिलौना दे देते हैं, चलो तो उसको छोटा छोटा प्लास्टिक का कचरा का खिलौना, तुम इसमें खाना बनाओ, है कि नहीं? कलम, कॉपी, मोटरसाइकिल, छोटे सा मोटरसाइकिल दे देते हैं। तो खिलौना से, लेकिन वो सब जब खेलता है तो क्या करेगा, कोई बाप बनेगा, कोई माँ बनेगा, कोई बड़ा भाई बनेगा, कोई दादा बनेगा, कोई दादी बनेगा, और उसका नकल करता है। तो वैसे ही जैसे आध्यात्मिक लोक में सिर्फ भगवान है और भगवान की ही सेवा सब करते हैं, तो कभी कभी जीवों के हृदय में आता है, हमारी भी होती, तो भगवान उसको एक टेम्पोररी लोक दे देते हैं, जाओ वहां तुम राजा बन जाओ, अपना मेहनत करके जो भी करना है, कर्म की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ जीव आता है तो उसको चूंकि कोई ज्ञान नहीं है, जैसे आपका बच्चा बताए ना, आपका बेटा अगर छोड़ के आपको चला जाए, नहीं मैं बाप से अलग रहूंगा, वहां तो बाप का ही चलता है, बोलेगा 9 बजे के बाद नहीं, दारू नहीं पी के आना है, 12 बजे नहीं आना है, इवनिंग शो, नाइट शो नहीं देखना है, तो अलग चला जाता है, ठीक है ना। तो आप अलग चला गया, तो आप उसको उस शहर में, दूसरे शहर में है, तो आप किसी साथी को बोलेंगे भाई देखो मेरा बेटा गया है, उसका ध्यान रखना, लेकिन अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बेटा अलग होता है तब उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है कि गैस कहाँ से मिलेगा, बिजली बिल कहाँ जमा करना है, प्लम्बर कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन कहाँ मिलेगा, दूध कहाँ मिलता है, सब्जी, उसको जो कुछ पता नहीं है ना। घर में जब बाप माँ के साथ है तो सारे चीज बाप माँ करते हैं, नौकर चाकर है, सब सुख सुविधा है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे घर चल रहा है और कैसे वो आनंद भोग कर रहा है। तो वही स्थिति है भगवान के लोक में, वहां कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब इस संसार में आता है तो उसको सब कुछ करना है। तो जब आते हैं तो हमारा कोई कर्म नहीं रहता है, फिर हम लोग छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा होते हुए, पेड़ पौधा होते हुए, जो भी है पशु जोनी में, आदमी की जोनी में आते हैं। तो पशु वगैरह को आप देखेंगे, उन लोगों को जो है कर्म का फल नहीं है, वो अपना धीरे धीरे, जब मनुष्य होते हैं तो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दे दी, अब तुम राज करो या जो करना है करो, लौट के आना है तो घर आ जाओ, तुमको आटे दाल का भाव मालूम हो गया, आ जाओ, नहीं आना है तो ठीक है, तुम करो, अपना मेहनत करो और सारा चीज नौकर रखो और सारा प्रबंध करो, है कि नहीं। तो मनुष्य जब होते हैं तब आपको कर्मों का फल लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी, तो कर्म की स्वतंत्रता दी तो कर्म का फल भी मनुष्य को लगेगा। पेड़ पौधों और पशुओं को नहीं लगता है, वो लोग सीधा धीरे, चूंकि उनको मनुष्य बनना है, भगवान के पास पहुंचने के लिए मनुष्य जोनी माना है, तो धीरे 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 इस जन्म में बिल्ली है तो फिर कुत्ता हो गए, कुत्ता से बंदर हो गए, बंदर से आदमी हो गए। हाँ, वो भगवान के नियम के तहत जो है आगे बढ़ते रहता है। जिस जानवर को आप देखते हैं, अगर किसी को कष्ट है तो समझ लीजिए कोई मनुष्य अपने पाप कर्मों के चलते जानवर हुआ और उसको कष्ट हो रहा है। नहीं तो जो पहली बार भगवान के लोग गिरा और इवैल्यूएशन उसका हो रहा है, इवोल्यूशन,
और आगे के जोनियों में उसका जो है बढ़ रहा है, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट होता है जो हम लोग पाप करके जो जानवर की जोनी में जाते हैं, जो जीवों को मारते हैं, फिर अगले जन्म, इस बार आपने मारा गाय को, तो फिर अगले जन्म में वो जो है हत्यारा बनेगा और आप गाय बनेंगे, आपको काट देगा। तो इसीलिए मनुष्य जब हो जाते हैं तब आपके कर्मों के हिसाब से आप विभिन्न जोनियों में पैदा होते हैं। आपने किसी की हत्या कर दी तो आप भी पैदा हुए और आपकी बचपन में हत्या हो गई। कुछ भी कारण हो सकते हैं, इन कर्मों की गति को समझना मुश्किल है, लेकिन ये सभी कर्मों का ही फल है। इसलिए आप जिसको देखते हैं बच्चा में पैदा हुआ मर गया, अब वो कितने जन्म पैदा हो चुका है और क्या कर्म किए हो तो हम लोग नहीं जानते हैं ना, जी जी, है कि नहीं। पिछले कर्म को कोई नहीं जानता है, इसीलिए सब कर्मों का फल है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने नियम बना दिया, उस नियम के हिसाब से कर्म करेंगे तो सुख दुख भोगेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छी तरह से सब समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवत गीता पहली बार सुन रहा हूँ, आपसे ही सुन रहा हूँ, मेरी जीवन में अच्छी लग रहा है और मैं आगे भी सुनते रहूंगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू विजय प्रभु। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, नहीं डॉक्टर नयन प्रकाश, सॉरी। ठीक है, पूछ लीजिए लक्ष्मण प्रभु, कोई भी पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे डॉक्टर कृष्ण। लक्ष्मण बताइए। हाँ सर, प्रभु जी मेरा सवाल है कि जैसे आदमी की मृत्यु होती है तो वो या तो वैकुंठ लोक में जाएगा, गोलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो आदमी की मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, वहां पे पाप पुण्य का भोग लेता है वो, ठीक है। अगर पुण्य किया है तो नरक में जाता है, और पुण्य किया तो स्वर्ग में जाता है, पाप किया है तो नरक में जाता है, वहां पे अपने कर्मों का फल भोगता है। तो फिर जब वापस पृथ्वी लोक में आता है जीवात्मा, तो फिर उसके साथ में कर्म का बंधन कैसे आता है? फिर तो वो तो सारे भोग के आ गया वहां पे। एक्चुअली क्या है ना, वो सभी जैसे आप हम लोग पढ़े ना, कल ही पढ़े, जो मृत्यु के समय जो आपका थॉट प्रोसेस है, उस समय जो आप चिंता करते हैं, उस समय उसी हिसाब से आपका जन्म होता है, ठीक है ना। अगला जन्म जैसे ही आपकी मृत्यु हुई, कहाँ जन्म हो गया वो डिसाइड हो गया, हाँ जी, ठीक है। और अब वहां जन्म लेने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप किसी के, मान लीजिए आपको जब मर रहे हैं तो आपको अपने बेटे से बहुत मोह है, ठीक है। अब मरने के समय आपको बेटे का याद आया, ऐसा हो सकता है जब आप मरे बेटे को याद करते हुए, तो आपको अब बेटे के पास ही पैदा होंगे, क्योंकि उससे आपकी आसक्ति थी। अब आपको प्रतीक्षा करनी होगी, जो बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, तब तक यू हैव टू वेट, ठीक है। तो आप जो जघन्य कर्म करते हैं, नरकों में जाते हैं सिर्फ जघन्य कर्मों के लिए, जैसे बलात्कार किया, व्यभिचार किया, किसी को मर्डर किया, किसी को, तो वो जो आप देखेंगे गरुड़ पुराण में और महाभारत में भी, गरुड़ पुराण में डिटेल है जो किस कर्मों के लिए किस नरक में जाना है। तो मान लीजिए 28 तरह के नरक हैं, तो आपको उन 28 नरकों में जाना पड़ेगा। जैसे आपको जिंदा जीवों को जला दिए, है कि नहीं, तेल में जला दिया, तो आपको भी तेल में जलाया जाएगा, और उस समय आपको यातना शरीर मिलता है, आप मरेंगे नहीं। जैसे अभी आदमी को तेल में जला दिया जाता है, मर जाएंगे, तो थोड़ा देर कष्ट होगा और मर गए। आपको भाला भोंका जाए तो आप क्या होगा, आपको कष्ट होगा, मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन जब यातना शरीर, जब मृत्यु के बाद नरक में जाता है तो यातना शरीर मिलता है, वो यातना शरीर मरता नहीं है। आपको जब तेल में भी जलाएगा तो आप सिर्फ कष्ट भोगेंगे, बट आप मरेंगे नहीं, बेहोश नहीं होंगे। आपको जब भाला रहती है, वो आत्मा तो रहती है, उसका शरीर भी रहता है ना, क्योंकि आत्मा तो नहीं, शरीर के मार्फत ही आत्मा भोगेगी ना। लेकिन यात्मा शरीर तेल में जल के मरता नहीं है, उसको भाला भोगते रहिएगा और मरेगा नहीं, क्योंकि मर जाएगा तब तो फिर भोगेगा नहीं ना, भोगेगा नहीं। यातना शरीर का ऐसा डिजाइन किया है जो वो शरीर में आप कष्ट भोगेंगे लेकिन बेहोश नहीं होंगे, तेल में आपको जलाएगा लेकिन आप जिंदा रहेंगे। तो नरक में जो है, जो घोर कर्म है, जो घोर कर्म है, जैसे बोलते हैं ना कुंभी पाक, जघन्य पाप, हाँ जी, हाँ जी। नरक जैसे 28 तरह के हैं, कुंभी पाक नरक है, रौरव नरक है, महारौरव नरक है, इस तरह के कई नरक है। तो उन नरकों में जाते हैं, वो जघन्य पाप का भोग भोगते हैं, ठीक है। और फिर आपने बहुत पुण्य कर्म गए तो कुछ दिन स्वर्ग गए। लेकिन कर्म बंधन जो है, वो जैसे स्वर्ग में है तो उस समय भी कर्म बंधन बनते रहता है ना। जैसे वहां देवताओं से घृणा की, देवताओं से ईर्ष्या हुई, ठीक है ना, तो एक बंधन बन गया। जैसे असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और आप असुरों से लड़े, तो फिर कर्म बंधन बन गया।
तो कर्म बंधन हर क्षण बनता है, हर क्षण। अभी आपने जो काम किया उसका कर्म बंधन बन गया। अच्छा लगा तो राग का कर्म, नहीं लगा बुरा लगा तो द्वेष का कर्म। तो वो सारे कर्म बंधन खत्म नहीं होते हैं। स्वर्ग में जाकर के कुछ पुण्यों का फल भोग लेते हैं, नरक में जाकर के जघन्य अपराधों का फल भोग लेते हैं, लेकिन कर्म संस्कार इतने हैं और इतने जन्मों के हैं जो वो सभी जमा रहते हैं। तो जन्म तो आप लेंगे, मरते समय आपकी जो चित्तवृत्ति क्या थी, आपको क्या याद आया, लेकिन आपका फिर जन्म ले लेंगे अपने बेटा का बेटा होकर के, लेकिन आपकी जीवन धारा जो चलेगी वो फिर वो कर्म संस्कारों से उसको धक्का लगेगा। और फिर आप जो अपना कर्म, चूंकि देखिए सिर्फ कर्म संस्कारों से ही नहीं चलता, फिर आपको कर्म करने की स्वतंत्रता तो भी है ना। है कि नहीं? मान लीजिए आपके पुराने कर्म संस्कार हैं और उसमें है आपको 10 लाख रुपए का घाटा लगेगा, लेकिन आप अभी मेहनत करके आपने ऐसा अपना बना लिया कि आपके पास करोड़ों रुपया है, ठीक है, तो आपको पूर्ति हो जाती है। नहीं, 10 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इस जन्म में कर्म नहीं कर रहा है और बैठ गया, जो भाग में लिखा होगा वही होगा, क्या करना, ऐसा नहीं हो। जो भाग में लिखा हुआ है वो तो होता ही है, लेकिन आप जो कर्म करते हैं, अभी जो कर्म किया वही तो 1 मिनट के बाद भाग्य बन गया ना, भाग्य बन गया। है कि नहीं? हर क्षण कर्म करते हैं और हर क्षण कर्म फल बनता जाता है। तो जैसे संस्कार बोले जाते हैं, 3 तरह के संस्कार होते हैं। एक जैसे आप पत्थर पर लकीर खींच दीजिए, ठीक है ना, और एक जमीन पर लकीर खींचिए, एक बालू पर लकीर खींचिए और एक पानी पर लकीर खींचिए। तो पानी पर जो लकीर खींचेंगे वो तुरंत गड्ढा भर जाएगा, मिट जाएगी। बालू पर लकीर खींचेंगे, हवा आएगी, वो भर जाएगा। पृथ्वी पर जो गड्ढा करेंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पत्थर पर जो लकीर है उसको बहुत टाइम लगेगा। तो पत्थर पर लकीर, जैसे आपको मान लीजिए आपके बेटे को किसी ने मार दिया छुरा से, आप बोलेंगे इसको तो मैं 7 जन्म छोड़ूंगा नहीं। अब आपके उससे बदले की भावना है, तो आप जब तक उस आदमी से बदला नहीं ले लेंगे, वो संस्कार, चूंकि वो पत्थर पर पड़े हुए लकीर हैं, वो आप सचमुच 7 जन्म में, अगर अगले जन्म में मान लीजिए नहीं मौका मिला, चूंकि क्या आप बदला कब लेंगे? जब उससे मिलेंगे तभी ना। अगले जन्म में मान लीजिए उससे भेंट ही नहीं हुई, तो लोग 100 जन्म बाद भी बदला लेते हैं। जैसे भीष्म पितामह को जो तीर की सैया पर पड़े थे और उतने दिन पड़े रहे, तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान मैं तो अपने 100 जन्म देख गया, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो हमको इतना कष्ट दिया गया, किस कर्मों का फल है? तो भगवान बोले थोड़ा और पीछे जाइए। तो 101वां जन्म में गए तो देखे उन्होंने एक तितली को पकड़ के बीन बीन के कांटे से मार दिया। जी प्रभु जी, तो 101वां जन्म का फल मिला। तो इसलिए ये कर्मों की गति बहुत ही डिफिकल्ट है। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान को, हमको भी नहीं समझ में आता है आप कैसे देते हैं। जी प्रभु जी, मोटा मोटी नियम ही है। तो सारे हम नहीं भोगते, मोटा मोटी फल पुण्यों का फल स्वर्ग में भोग लेते हैं, जघन्य अपराधों का नरक में, लेकिन हमारे कर्म संस्कार की थैली जो है वो चलती रहती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया मुझे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। शुक्ला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा निवेदन ये था कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कर्म से हम बच जाएं और प्रभु में लीन रहें? इसका सबसे पहला उपाय तो यही है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ये शुद्धि वाला, ये साबुन है। तो इसीलिए साबुन लगाना शुरू कर देंगे तो कम से कम जो मल है वो छूट जाए। उसके बाद मल, नया मल बने नहीं, है कि नहीं? तो उसके लिए भी कंस्टिन्यू, एक बार मान लीजिए आपने साबुन लगा लिया, कपड़ा साफ हो गया, फिर वो गंदा नहीं होगा ये तो जरूरी नहीं है, तो उसको हमेशा साबुन लगाते रहना पड़ेगा। तो एक है जो जाप करना, भगवान का नाम लेना, तो उससे प्यूरिटी होगी, जो पुराने कर्म संस्कार हैं धीरे धीरे खत्म होंगे। और फिर सारे अपने ध्यान को भगवान में लगाना, सारा काम भगवान के लिए करना। देखिए कर्म बंधन किससे बनता है? रूप से, स्पर्श से, गंध से, स्वाद से, शब्द से। यही 5 चीजें। हमको रूप से आसक्ति हो जाती है या अनासक्ति हो जाती है, खराब रूप है तो घृणा हो जाती है। गंध से, स्पर्श, कोमल चीज चाहिए, कैसा चाहिए। आप देख लीजिए आपके जितने भी आनंद के स्रोत हैं उसको आप इसी 5 चीज में ही बांटेंगे, है कि नहीं? इस 5 के सिवा और कुछ हमारे आकर्षण का चीज इस धराधाम पर है ही नहीं। यही 5, संक्षेप में ही 5 ही है। अब इसके बहुत रूप हैं। अब जैसे भोजन, स्वाद है, भोजन से स्वाद आता है। भोजन के बहुत तरह है।
अब जो है खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमकीन है, उसका सम्मिश्रण है, तो 56 भोग हो जाते हैं। तब उसको आपको किसी भोजन से आसक्ति हो गई, किसी को किसी भोजन, किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को, तो वही बंधन बनता है। बंधन ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो जब वही हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, जब आप अपने सारे कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ देंगे, जो भगवान के लिए खाना बनाया, भगवान को चढ़ाया, खाया, मीठा है, खट्टा है, और जो जैसे आप देखिए कभी आपकी पत्नी ने कुछ खाना बनाया, बिरयानी बनाया और आपको बहुत अच्छा लगा, और एक हफ्ता बाद उसने फिर बिरयानी बनाया, और अब जो एक हफ्ता पहले आपने बिरयानी खाया था वैसा स्वाद नहीं है, तो आप थाली उठा के फेंक दें, क्या बनाई हो, उस दिन बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ, आपके मन में एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, पहले दिन तो बनाया तो उस दिन पहली बार खाए थे, पता नहीं था, अब वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब उसके रिस्पेक्ट में आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, आप शिकायत करेंगे, आपको बोलेंगे अरे उस दिन ऐसा नहीं था, आज बहुत अच्छा बना है, या उस दिन से थोड़ा कम नमक मिर्च हो गया, कंपोजिशन गड़बड़ हो गया, आज टेस्ट खराब हो गया, तो बोलेंगे क्या बनाई, थाली उठा के फेंक देंगे, है कि नहीं। तो वो एक जब रेफरेंस हो जाता है आदमी को, अब उस रेफरेंस में तुलना करता है ये अच्छा है या खराब है, और उसी से एक बंधन पैदा होता है। अच्छा लगा, अब उस खाने के प्रति आपको राग हो गई, अब वैसा ही बिरयानी चाहिए, किसी रेस्टोरेंट ने अच्छा खाना खिला दिया तो वैसा ही चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में बहुत घटिया खाना दिया, अब घृणा हो गई, भूख लगी हुई है लेकिन उस रेस्टोरेंट में नहीं घुसेंगे, नहीं इडियट है, ये बहुत झाल खाना खिलाता है, बहुत तीता खाना खिलाता है, जो भी है बहुत गंदा ये है। तो इस तरह से हर चीज में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती रहती है, तो उसमें सम होना पड़ेगा, ये भगवान की इच्छा है। ठीक है, जो खाना खाया वो खाना मीठा है, तीता है, खाया, कोई रूप अच्छा है, खराब है, ठीक है, जो भी है, तो ना उससे घृणा करेंगे ना उसकी चाहत करेंगे, तो धीरे 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 मानेंगे कि भगवान की हमारा कर्म है, उसके कोई दुख हुआ, किसी ने इंसल्ट कर दिया, हाँ ठीक है, यह हमने भी किसी को किया होगा, इसने कर दिया, है कि नहीं। अब हम लोग जैसे घर जाते हैं, कभी आपने रिक्शा वाले को इंसल्ट कर दिया, क्या मान लीजिए 50 रुपया दीजिए, क्या तुम चोर हो, डकैत हो, लूटते हो, 50 रुपया भाड़ा होगा क्या, हाँ, जो कि सचमुच 50 रुपया भाड़ा है, आपको पता नहीं है कि नहीं। फिर कभी आपको किसी ने ऐसे ही इंसल्ट आपको कर दिया, किसी पुलिस ने आपकी गाड़ी पकड़ ली झूठ मूठ का, जब गलत चला रहे हो, 200 रुपये फाइन दो, तो उस समय आप पुलिस को गाली देंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे जब आपने उस दिन रिक्शे वाले को गाली दिया था अकारण, है कि नहीं, तो याद नहीं रहेगा। तो हम जो कर्म करते हैं उसका हिसाब नहीं रखते हैं, और फिर कुछ होता है तो हम उस समय इमीडिएट खोजते हैं, अरे हमने तो इसको कुछ नहीं किया, हमको क्यों इंसल्ट कर दिया, हमारा पॉकेट क्यों मार लिया। अरे आप ऑफिस में गलत टीए बिल बनाते हैं, गलत पैसा सरकार से लेते हैं, और कभी पॉकेट मार आपका मार लिया, आप पॉकेट मार को गाली देंगे, पुलिस को गाली देंगे, अरे जब उस समय गलत आप बिल बना रहे थे तो उस समय का तो ध्यान नहीं है अभी ना। इसलिए कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई सुख दुख जो है उसके कारण हम ही हैं। तो इसलिए अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको ये समझ के जी हमारे कर्म संस्कार हैं, सुख मिला तो उछलना नहीं है, दुख मिला तो उसको रोना नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे वो समत्व आ जाता है, जैसे ही भजन करेंगे और भगवान की भक्ति में सारा चीज लगा देंगे, सारा चीज उनके लिए होगा, तो संस्कार स्वतः भी खत्म हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, वो भगवान ही नियम के बियॉन्ड है, वहाँ ये सब कार्य कारण नियम नहीं चलता है। तो प्रभु जी, साधना के द्वारा बंधन और संबंध से लगभग कितना समय लगेगा मुक्त होने में? अगर साधना करते रहते हैं तो जीवन के बंधन और संबंध से मुक्ति लेने में कितना समय लग सकता है? हाँ, उसमें जैसे बोले हैं भगवान, इसमें भागवतम में कहता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोलते हैं जो अकामी हो, जिसकी कोई कामना नहीं हो, या जो सर्वकामी, जिसको कामना ही कामना हो, जो मोक्ष कामी, जिसको मोक्ष की कामना हो, तीव्रेन भक्ति योगेन, जो जितनी तीव्रता से भक्ति में लग जाएगा, श्रवणम, कीर्तनम, पूजनम, अर्चनम, दास सख, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, भोग लगाना, सुलाना, उठाना, नहाना, तो जितना उसमें लग जाएगा, जितनी जल्दी तीव्रेन भक्ति योगे, तो बोलते हैं जो बहुत ही कामी आदमी है, लेकिन उसकी भी अगर तीव्रता होगी भक्ति में, तो यजेत पुरुष वो परम पुरुष को प्राप्त करेगा। तो कोई मोक्ष कामी भी है, लेकिन अगर उसकी भक्ति में तीव्रता नहीं है तो भगवान को नहीं प्राप्त करेगा। कोई सर्वकामी भी अगर उसकी भक्ति में तीव्रता है तो भगवान को प्राप्त करें। इसलिए इसका कोई टाइम नहीं बतला सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी गति कितनी है, आप कितनी तीव्रता से इसको ग्रहण करते हैं और कितने विश्वास पैदा करते हैं। फिर श्रद्धा, जितना विश्वास करेंगे उतनी जल्दी, जितना सेवा करेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो उतना भगवान से जो है बातचीत बढ़ेगी, रेसिप्रोकेशन बढ़ेगा। जी प्रभु। तो इसलिए टाइम आप पर है, कोई टाइम इसका नहीं बता सकता। सादर प्रणाम प्रभु, सादर प्रणाम, आभार। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा। और कोई मैं देख रहा हूँ कि AK चौधरी जी, अच्छा वो तो आपने पूछ लिया। लक्ष्मण प्रसाद जी पूछ लिया। अन्ना सर, आपको कोई लास्ट क्वेश्चन है? जी मुझे एक आनंद क्वेश्चन गौरव है जी। और पूछना अगर अवसर दिया जाएगा तो। हाँ, AK चौधरी जी और अन्ना जी, आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछ लीजिए एक एक करके। एक विजय सामंत प्रभु है ना, विजय सामंत, तो चलेंगे क्या? एनीवे, अन्ना प्रभु, चौधरी प्रभु पहले आप पूछ लीजिए। जी पहले तो माफी चाहूंगा, प्रभु मैंने पूछ लिया, वक्त ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरा सवाल प्रश्न ये है कि इंसान जिंदगी में जब ये सोच लेता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं, प्रभु की सेवा करूं, जो भी प्रभु का कर रहा हूं और भगवान कृष्ण की भी करूं, फिर कुछ स्थिति ऐसी होती है जो बड़ा धर्म संकट की स्थिति आ जाती है। जैसे घर में किचन में कॉकरोच का आ जाना, मॉस्किटो आ जाना, डेंगू फीवर के कारण मॉस्किटो चारों तरफ आना, कहीं ऐसी जगह होती है घर के पास कोई पतला सा सांप आ जाना जो न बाहर जा सके, लॉन में घुस के रहेगा, बच्चे निकलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई गेस्ट आएगा, तो उस स्थिति में इंसान को हत्या करना पड़ता है और ये मन में एक तनाव बना रहता है। आप जैसे ही विद्वान आदमी रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या इसका पहले भी किसी भक्त ने पूछा था जो मच्छर को मारना है कि नहीं, तो एक तो देखिए, जो भी जानवर हमको मारते या काटते हैं वो भय से, उनको हमसे भय लगता है इसीलिए वो हम पर आक्रमण करते हैं, नंबर 1 मोस्टली। लेकिन अब जैसे शेर से आप टकरा गए, शेर भूखा है तो खा जाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी है, उसको खाने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए तो कुछ भी, कोई भी कष्ट हमको जो मिलता है वो हमारे कर्मों के फल से ही मिलता है। जैसे हमने बोले ना, हम जो खाना बनाते हैं अनजाने में हम बहुत कीड़े मकोड़े को मारते हैं कि नहीं? अनजाने में जब खेती करते हैं, दवाई डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, आलू कोड़ते हैं, निकालते हैं, लाइट जलाते हैं तो कीड़े पतंगे मरते हैं, ताप से छोटे मोटे बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो हमारा जो है अनजाने में भी पाप कर्म होता है। तो इसलिए मच्छर भी हमारे बिना कर्मों के फल के नहीं काटता है। लेकिन हम उतना, जैसे जैन मुनि का हमने दिया था ना, जैन मुनि पट्टी बांधे रहते हैं, 5 बजे के बाद खाते ही नहीं, जीव मर जाएंगे, झाड़ू लगाते हैं, आगे आगे झाड़ू लगे चलेंगे तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। इसीलिए जो वो अनजाने में जो पाप होता है वो भी नहीं, इतना वो केयरफुल रहते हैं। बुद्ध वाले उतना नहीं करते हैं, जैन वाले बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है उनको, तो लोग तो एनलाइटेंड लोग थे, उनको ये पता है जो अनजाने में भी हमको हत्या नहीं करनी है, तो वो सब पापों का जो है। लेकिन जब आपको वो मच्छर भी नहीं काटेंगे अगर आपके कर्म ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जैसे भगवान ने बोला जो ठीक है तुम युद्ध करो, तुम्हारा जो है अधर्म है, तुम्हारा राज होना चाहिए, तुमको राज नहीं दे रहा है, 5 गांव बोले वो भी नहीं दे रहा, तो तुम इससे युद्ध करो। इसीलिए सेल्फ डिफेंस में अगर ये करते हैं तो उसका फल उतना बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको कोई घृणा नहीं है मच्छर से, हम उसको दुश्मनी नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन अब हमारा खून पी रहा है, ठीक है, तो हम अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो चित्त की स्थिति जो है उसमें घृणा की नहीं है, क्रोध की नहीं है। हाँ, अगर घृणा की नहीं हो, क्रोध की नहीं हो, तब तो पाप का भागी नहीं होंगे ना। मान लीजिए डेंगू का मच्छर चारों तरफ है, अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो ये लोगों में फैल जाएगा, तो तरह तरह का करना पड़ेगा। ऐसे वही बोल रहे हो, ऐसा होता नहीं है। या जैसे कोई सांप आ गया गार्डन में, अब वो न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छोटा सा है, घुस के बैठ जाएगा, जहरीला है, तो सेल्फ डिफेंस में अगर उसको मारना पड़ता है तब तो पाप की भागी दूसरा कोई रास्ता। राइट, अगर आप पर आक्रमण कर ही देता है तो क्या करेंगे? नहीं, आक्रमण नहीं करता, अगर वहां है और छोड़ दिया जाए तो वो घर के अंदर चला जाएगा या वहीं बैठा रहेगा, वो भाग जाएगा। वो देखिए सांप वो काटता है डर से, नहीं तो कोई सांप नहीं काटता है, सांप के काटने की प्रवृत्ति नहीं, वो भय होता है उसको। मनुष्य पर किसी जानवर को विश्वास नहीं है। मनुष्य ऐसा जीव है ना जिस पर कोई जीव जानवर जंतु विश्वास नहीं करता, इसलिए वो सोचता है नहीं इसको पहले काट लो नहीं तो मार ही देगा, है कि नहीं? इसीलिए वो लोग इतने भयभीत रहते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि वो ऐसी जगह में हो जहां से वो न बाहर जा पाए और ना ही अंदर आ सकता है घर में या ये, तब तो सेल्फ डिफेंस में उसको मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। एक्चुअली आप वहां डंडा लेके खड़े रहेंगे तो रहेगा अंदर, आप वहां से छोड़ चले जाओ, वो विश्वास नहीं है आदमी पर, उसको वो भागेगा, जैसे ही देखेगा रास्ता खुलेगा ना वो भाग जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आदमी हमको छोड़ेगा नहीं, इधर रहेंगे तो मार ही देगा, है कि नहीं? तो वो अगर आप उस रूम को छोड़ के चले जाएं,
घर के अंदर रह जाए, कहीं कोने में जाके बैठ जाए, तब तो वो सांप का बोल रहे हैं क्या? प्राणी प्रेमी हाँ। जी 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 सांप का तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि अगर आपका सांप के साथ एनकाउंटर होता है तो आप, अगर आप में क्षमता है तो आप मार दीजिए, अगर आप में क्षमता नहीं है तो हाँ, आप वही सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में जी। बट हाँ, खोज के मत मारिए। नहीं, खोज के नहीं, मान लीजिए मतलब ये अगर स्थिति हो एनकाउंटर जाए हो गया और आपको लग रहा है कि आपके अंदर क्षमता है तो हाँ। मारना कोई पाप नहीं है। मतलब क्षमा चाहते हैं सूरनाथ प्रभु, बस क्योंकि इसीलिए पूछ रहे थे कि पाप अगर योनि के शरीर में ऐसी स्थिति हो जाए कि मतलब वो अंदर आ जाएगा, बच्चों को डस सकता है, कुछ भी कर सकता है, सही बात तो है। ऐसी स्थिति में सेल्फ डिफेंस में तो ये पाप नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नहीं आप और होना चाहिए। बिच्छू को। जी जी, बड़ी कृपा आप जो कर रहे हैं ना, हम लोगों का मार्गदर्शन, अब क्या बतावें, बड़ी कृपा है आपकी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ऐसे हरे कृष्ण। सूरनाथ प्रभु की कृपा है तो। बड़ी कृपा है जी हाँ, उनकी कृपा इसीलिए। थैंक यू थैंक यू। अन्ना प्रभु लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। जी, थैंक यू आनंद गौरव प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। सो हरे कृष्णा सुरानाथ प्रभु जी। मेरा प्रश्न जो है पंडित लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी को जब आप उत्तर दे रहे थे तब मुझे याद आया मेरा पहला प्रश्न क्या था, मैं भूल गया था। तो आपने जो क्विज में लास्ट क्वेश्चन पूछा था, जैसे हमारा नेक्स्ट बर्थ कैसे डिफाइन होता है, हमारे लास्ट थॉट्स और रिमेम्बरेंस से डिसाइड होता है कि हम कहाँ जन्म लेंगे। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट या फिर रेकी प्रैक्टिशनर बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक होता है प्रोसेस, जिससे हम आपके पिछले जन्मों में जाके देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे कुछ हुआ था जिसके कारण आप दुख भोग रहे हैं। तो ये सही प्रोसेस है क्या? क्या इसको हम बिलीव कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कुछ होता है प्रभु? हाँ, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या कराते हैं, रेकी वाले जो कराते हैं, वो बोलते हैं आप बैठ जाइए ध्यान में और आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान करिए, यही कराते हैं अगर आपने रेकी किया होगा तो। नहीं जी, नहीं किया है, मैंने सुना है कुछ लोगों से। इतना ही कराते हैं, वो आपको शरीर पर ध्यान कराएंगे। तो जब आप शरीर पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, जब मन पहले तो बाहर भटकेगा, फिर जब आपका ध्यान लगेगा तो शरीर में जो आपके वो सब संस्कार जमा है, देखिए आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है, ठीक है ना। आत्मा या तो बाहर लगी रहेगी, या आपने आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, एकांत स्थान में बैठ गए, नाक बंद कर लिया, कोई भोजन नहीं कर रहे हैं, जीव को स्वाद नहीं है, शरीर को स्पर्श नहीं है, तब आत्मा क्या करेगी, वो मन के अंदर जा करके और जो भोगे हैं उसी को निकाल करके भोगेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने बताया था, ते प्रतिप्रसव सूक्ष्म, पतंजलि योग दर्शन में कहा गया जो सूक्ष्म संस्कार हैं उनको प्रतिप्रसव कराना है। प्रतिप्रसव कैसे कराना है, तो ध्यान में बैठना है, और जब ध्यान करेंगे तो चूंकि आप मन को बाहर नहीं लगा रहे हैं, मन के लिए न रूप है, आंख बंद किए हुए, एकांत में जाकर बैठे हुए, रूम बंद करके, वहां हवा नहीं है, तो शरीर को कोई गर्म ठंडा नहीं लग रहा है, तो रूप रस स्पर्श कोई शब्द नहीं जा रहा है, तो आत्मा को ज्ञानेंद्रियों से कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है। तो मन भी एक ज्ञानेंद्रिय है। अब आत्मा क्या करेगा, मन में घुसेगा, और मन में जो स्टोर्ड हैं उसी को वो एक एक करके निकलेगा, और एक एक करके निकलेगा। अब वो जब अगर आपके बुरे संस्कार हैं, क्रोध के संस्कार हैं, ईर्ष्या के संस्कार हैं, तो क्या होगा, वो आपके शरीर पर पीड़ा लाएगा। और कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसके संस्कार हैं, तो आपके शरीर पर सुख की जो है अनुभव लाएगा। तो उसको देखते रहना, तो निकलते जाएगा। अब ऐसा नहीं जो आपको कुछ ऐसे संस्कार निकले जो आपको सर दर्द चालू हो गया, ऐसा होता है, लोगों को बेचैनी होती है, सर दर्द होता है, पीठ में दर्द होगा, पीठ में लगेगा पत्थर जैसा कुछ जम गया है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा स्फुरना होगी, शरीर पर इतनी गुदगुदी होगी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, चुपचाप बैठे रहना है और देखते रहना है, तो ऐसे कर करके निकल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं वो जो आप रिग्रेशन, जो पूर्व संस्कार हैं वो सबको निकाल करके निर्मूल कर दे रहे हैं। प्रतिक्रिया नहीं करना है, जैसे दर्द हुआ तो फिर अरे दर्द हुआ बस आंख खोल दी और उठ गए, नहीं, पीड़ा होगी, भीषण पीड़ा होगी, लेकिन वो पीड़ा को झेलते जाना है। इसका मतलब आपने बैठ के भोग लिया, वही तपस्या वही होती है ना, जो जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। तप मतलब क्या, तपते हैं किससे तपते हैं, सूर्य की रोशनी में नहीं तपते हैं, सूर्य की रोशनी से तपते हैं वो एक अलग है। लेकिन जो कर्म संस्कार जमा है, जो क्रोध के, घृणा के और जो भी पाप व्यभिचार किए, वो
वो सारे पाप या पुण्य जो ऊपर निकलते हैं, तो जब पहले पाप निकलते हैं तो तप होता है, पीड़ा होती है। और फिर समाधि में जाते हैं तो उस समय तप नहीं, उस समय पीड़ा नहीं होती है। तब जब जो अच्छे अनुभव होते हैं, अब फिर दोनों निकल जाते हैं, तब फिर भगवान के परमात्मा स्वरूप की और ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है। तो रिग्रेशन का मतलब वही हुआ जो ज्ञानेंद्रियों को आहरित करके, अंतर्मुखी करके उसको मन में लगा देना, और जमा संस्कार हैं वो संस्कार शरीर पर निकलते हैं, शरीर पर दुख या सुख का अनुभव पैदा करते हैं और उनको भोग लेना है, प्रतिक्रिया नहीं कर। प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर एक कर्म बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा लगा और फिर सोचे वो ऐसा अनुभव फिर चाहिए, तो बस वो एक कर्म और बन गया। पीड़ा हुई तो लगा वो पीड़ा नहीं चाहिए, उठ जाएंगे, तो फिर वो एक कर्म और बन गया। नहीं, पीड़ा हो या अच्छा लगे, उसको दृष्टा भाव में, हम लोगों ने बात की थी ना, जो दृष्टा भाव में रहना है, कर्ता भोक्ता नहीं, दृष्टा भाव। दृष्टा भाव मतलब आत्मा अलग, शरीर अलग। ये शरीर भोग रहा है, शरीर पर पीड़ा हो रही है, शरीर पर अच्छा लग रहा है, तो वो निकल जाएगा। तो रेकी वाले यही कराते हैं, रिग्रेशन यही होता है। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हेलो जी प्रभु जी, एक मेरा मन में जिज्ञासा था। जी मतलब जी प्रभु जी, जैसे कई बार हमारे मन में मेजॉरिटी के, हम सभी के संकल्प कभी नेगेटिव आते, कभी पॉजिटिव आते, सभी प्रकार के मन में संकल्प आते हैं। तो क्या इन संकल्पों को दूर करने का उपाय क्या एक प्रभु भक्ति ही है? अगर हाँ तो, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है प्रभु को याद करने के बावजूद भी इस तरीके के संकल्पों की जो व्याग्रता है वो शांत नहीं होती है। तो अगर हम भगवान को याद नहीं करें तो दूसरा फिर क्या उपाय हो सकता है इसका? दूसरा एक्चुअली भगवान का ही उपाय है, क्योंकि भगवान पर जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, और जब ये मानेंगे कि ये दुख जो हुआ हमारे कर्मों का फल है और ये दुख अब कट गए, है कि नहीं? या बहुत कुछ आपने मेहनत नहीं किया और आपको कुछ प्राप्ति हो गई, तो आपको लगा कि भाई ये पुण्य का कुछ किया होगा, उसका मिल गया। तो जब भगवान पर दृढ़ विश्वास होगा और ये रहेगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और जब भक्त होते हैं तो उनकी भगवान रक्षा करते हैं, बड़े बड़े दुख को भी वो छोटा कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में रेकी वगैरह करेंगे तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा, जो उसको भोगना है भोगना है, जितने दिन बैठ के भोगना पड़े। लेकिन भक्ति में ये है, जब आपको एक सुरक्षा का वातावरण रहेगा जहाँ भगवान है, तो भगवान है। चूंकि देखिए, ये संकल्प विकल्प क्यों होता है? ये भय से होता है, इच्छा से होती है कि नहीं? कोई इच्छा है इसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, डर है जो कल को कोई चोरी तो नहीं हो जाएगा, कोई मर तो नहीं जाएगा, कोई डकैती तो नहीं हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? यही भय रहता है, क्योंकि अपने जो कर्मों के फल है उससे कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो हमेशा अशांति इसीलिए आती है, और संकल्प विकल्प इसी से होता है, उन्हीं भय से। क्या होगा आगे, क्या होगा, सफल होंगे कि असफल होंगे, हानि होगा कि लाभ होगा, बचेंगे कि मरेंगे, स्वस्थ रहेंगे कि बीमार हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, वो सब भय से ही। अब भय कहाँ से आता है? राग से और द्वेष से। कुछ चीज की इच्छा होती है, लगता है जो मिलेगा कि नहीं, उसकी हम लोगों ने पहले चर्चा की ना, प्रिय ही विप्रयोग दुखम। जो प्रिय है वो अगर उससे वियोग हो जाता है, दुख होता है। अप्रिय ही संप्रयोग दुखम। जो अप्रिय है वो मिल जाएगा। अब अप्रिय है, मृत्यु नहीं चाहते हैं, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं मरे, हमारे धन का ह्रास नहीं हो, हमारी धन की चोरी नहीं हो, ये सब अप्रिय है। अब हमेशा मन में लगा रहता है जो कहीं ये तो नहीं मिल जाए, अप्रिय का संयोग। तो यही दो है, जो प्रिय लगता है उसके खोने का डर, जो लगता है उसको हो जाने का डर, और इसी अशांति से संकल्प और विकल्प होते हैं। तो जब भगवान के प्रति आपकी दृढ़ श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रभु जी, जैसे भगवान की भक्ति में भी बैठते हैं तो ये जो है संकल्प विकल्पों का इतना आवेग होता है कि मन फिर ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है भगवान की भक्ति में। वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। वही अगर आपको जी, अगर आप भगवान के ध्यान में बैठते हैं, आपके शरीर में पीड़ा हो, आपको बेचैनी हो, आपको तकलीफ हो, आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही हो, भय आ रहा हो, संकल्प विकल्प आ रहा हो, समझिए आपकी प्रगति हो रही है। अगर ये सब नहीं आता है तो समझिए आपकी, या तो आप महात्मा हैं या आपकी प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि हमने जो जमा कर रखा है, जब आप भगवान की भक्ति में बैठेंगे तो वही न निकलेगा, पीड़ा ही निकलेगी ना, या सुख मिलेगा, या संकल्प विकल्प होगा। हमेशा हमारी इच्छा और अनिच्छा निकलेगी। तो अगर वो होता है तो समझिए वो निकल रहा है। नहीं अगर निकल रहा है, आपको अगर ध्यान में बैठे पीड़ा नहीं हो, बेचैनी नहीं हो, 50 साल पहले के जो किसी ने अपमान किया वो याद नहीं आए, तो समझिए आपकी प्रगति नहीं हो रही है।
है कि नहीं? या तो आप महात्मा हैं, आप सिद्ध हैं, आपके कोई कर्म संस्कार नहीं है। क्योंकि हम जो जितनी जिंदगी भर किए हैं और पूर्व जन्मों का संस्कार वही निकलेगा ना। ध्यान में तो उसीलिए बैठते हैं, उसको निकालने के लिए। भगवान कहाँ से आ जाएंगे तुरंत? लेकिन धीरे 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 देखेंगे, जो जो बड़े जो पत्थर पर खींचे हुए लकीर बताया ना, वो संस्कार निकल जाएंगे, तो फिर बालू पर और पानी पर खींचे हुए संस्कार वो आपको संकल्प विकल्प नहीं देंगे। लेकिन पत्थर पर खींचे हुए संस्कार, धरती पर आपको सुख और दुख देंगे। तो सुख और दुख हो तो समझिए आपकी प्रगति हो रही है, सुख दुख नहीं हो तो समझिए आपकी प्रगति नहीं हो रही है। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, प्रणाम। ओके प्रभु, शैल वी क्लोज नाउ? हाँ प्रभु, वी शैल क्लोज नाउ। थैंक यू सभी को। जी, आप लोगों को बहुत ये मार्गदर्शन के लिए जय श्री कृष्णा। इतना सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में कर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ लेंगे सब लोग। हाँ, हरे जी, कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हेलो। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हेलो। राम हरे हरे।